Krishna are all transcendently sweet like sugar candy. Although the tongue of one afflicted by the jaundice of avidya cannot taste anything sweet, it is wonderful that simply by carefully chanting these sweet names every day, a natural relish awakens within his tongue and his disease is gradually destroyed at the root. Purport. The holy name of Lord Krishna, his qualities, pastimes, and so forth are all of the nature of absolute truth, beauty, and bliss. Naturally, they are very sweet, like sugar candy, which appeals to everyone. Nescience, however, is compared to the disease called jaundice, which is caused by bilious secretions. Attacked by jaundice, the tongue of a deceased person cannot palatably relish sugar candy. Rather, a person with jaundice considers something sweet to taste very bitter. Avidya similarly perverts the ability to relish the transcendently palatable name, quality, form, and pastimes of Krishna. Despite this disease, if one with great care and attention takes to Krishna consciousness, chanting the holy name and hearing Krishna's transcendental pastimes, his ignorance will be destroyed and his tongue enabled to taste the sweetness of the transcendental nature of Krishna and his paraphernalia. Such a recovery of spiritual health is possible only by the regular cultivation of Krishna consciousness. When a man in the material world takes more interest in the materialistic way of life than in Krishna consciousness, he is considered to be in the diseased condition. The normal condition is to remain an eternal servant of Krishna, of the Lord. Jivet Swarupa Hai Krishna Nityadas. This healthy condition is lost when living entity forgets Krishna due to being attracted by the external features of the Krishna's Maya energy. This word of Maya is called Durashraya, which means false or bad shelter. One who puts his faith in Durashraya becomes a candidate for hoping against hope. In the material world, everyone is trying to become happy, and although their material attempts are baffled in every way, due to their nescience, they cannot understand their mistakes. People try to rectify one mistake by making another mistake. This is the way of the struggle for existence in the material world. If one in this condition is advised to take to Krishna consciousness and be happy, he does not accept such instructions. This Krishna consciousness movement is being spread all over the world just to remedy this gross ignorance. People in general are misled by blind leaders. The leaders of human society, the politicians, philosophers and scientists are blind because they are not Krishna conscious. According to Bhagavad Gita, because they are bereft of all factual knowledge due to their atheistic way of life, they are actually sinful rascals and are the lowest among men. Namam dushkritano muda prapadyante naragama mayaya pritagyana asuram bhavamashritaha. Those miscreants who are grossly foolish, lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion and who partake of the atheistic nature of demons, do not surrender unto me. Such people never surrender to Krishna and they oppose the endeavor of those who wish to take Krishna's shelter. When such atheists become leaders of society, the entire atmosphere is surcharged with nescience. In such a condition, people do not become very enthusiastic to receive this Krishna consciousness movement, just as a diseased person suffering from jaundice does not relish the taste of sugar candy. However, one must know that for jaundice, sugar candy is the only specific medicine. Similarly, in the present confused state of humanity, Krishna consciousness, the chanting of the holy name of Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is the only remedy for setting the world aright. Although Krishna consciousness may not be very palatable for a diseased person, Srila Rupa Goswami nonetheless advises that if one wants to be cured of the material disease, he must take to it with great care and attention.
One begins his treatment by chanting the Hare Krishna Mahamantra, because by chanting this holy name of the Lord, a person in the material condition will be relieved from all misconceptions. Cheto Darpana Pardhanam. Avidya, a misconception about one's spiritual identity, provides the foundation for ahankara or false ego within the heart. The real disease is in the heart. If the mind is cleansed, however, if consciousness is cleansed, a person cannot be harmed by the material disease. To cleanse the mind and heart from all misconceptions, one should take to this chanting of the Hare Krishna Mahamantra. This is both easy and beneficial. By chanting the holy name of the Lord, one is immediately freed from the blazing fire of material existence. There are three stages in chanting the holy name of the Lord: the offensive stage, the stage of lessening offenses, and the pure stage. When a neophyte takes to the chanting of the Hare Krishna Mahamantra, he generally commits many offenses. There are 10 big basic offenses, and if the devotee avoids these, he can glimpse the next stage, which is situated between offensive chanting and pure chanting. When one attains the pure stage, he is immediately liberated. This is called Bhava Mahadavagni Nirvapanam. As soon as one is liberated from the blazing fire of material existence, he can relish the taste of transcendental life. The conclusion is that in order to get freed from the material disease, one must take to the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. The Krishna consciousness movement is especially meant for creating an atmosphere in which people can take to the chanting of the Hare Krishna mantra. One must begin with faith, and when this faith is increased by chanting, a person can become a member of the society. We are sending Sankirtan parties all over the world, and they are experiencing that even in the remotest part of the world where there is no knowledge of Krishna, the Hare Krishna Mahamantra attracts thousands of men to our camp. In some areas, people begin to imitate the devotees by shaving their heads and chanting the Hare Krishna Mahamantra only a few days after hearing the mantra. This may be imitative, but imitation of a good thing is desired. Some imitators gradually become interested in being initiated by the spiritual master and offer themselves for initiation. If one is sincere, he is initiated, and this stage is called Bhajana Kriya. One then actually engages in service of the Lord by regularly chanting the Hare Krishna Mahamantra 16 rounds daily and refraining from illicit sex, intoxicants, meat eating and gambling. By Bhajana Kriya, one attains freedom from the contamination of materialistic life. He no longer goes to a restaurant or hotel to taste so-called palatable dishes made with meat and onions. Nor does he care to smoke or drink tea or coffee. He not only refrains from illicit sex, but avoids sex life entirely. Nor is he interested in wasting his time in speculating or gambling. In this way, it is to be understood that one is becoming cleansed of unwanted things, anartha nivritti. The word anartha refers to unwanted things. Anarthas are vanquished when one becomes attached to the Krishna consciousness movement. When a person is relieved from unwanted things, he becomes fixed in executing his Krishna activities. Indeed, he becomes attached to such activities and experiences ecstasy in executing devotional service. This is called bhava, the preliminary awakening of dormant love of Godhead. Thus, the conditioned soul becomes free from material existence and loses interest in the bodily conception of life, including material opulence, material knowledge, and material attraction of all variety. At such a time, one can understand who the Supreme Personality of Godhead is and what is Maya is. Although Maya may be present, it cannot disturb a devotee once he attains the bhava stage. This is because the devotee can see the real position of Maya. Maya means forgetfulness of Krishna, and forgetfulness of Krishna and Krishna consciousness stand side by side like light and shadow. If one remains in shadow, he cannot enjoy the facilities offered by light. And if one remains in light, he cannot be disturbed by the darkness of shadow. By taking to Krishna consciousness, one gradually becomes liberated and remains in light.
Indeed, he does not even touch the darkness. As confirmed in Chaitanya Charitamrita, Madhya 22.31, Krishna Surya Samamaya Haya Andhakar, Yaha Krishna Kaha Nahi Maya Adhikar. Krishna is compared to sunshine and Maya is compared to darkness. Wherever there is sunshine, there cannot be darkness. As soon as one takes to Krishna consciousness, the darkness of illusion, the influence of the external energy will immediately vanish. हरे कृष्णा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था पहले 6 चैप्टर्स के अंदर, तो प्राइमरली संबंध ज्ञान के ऊपर था कि कैसे अपना संबंध भगवान से इस्टेब्लिश किया जाए। और उसमें हमने शुरुआत के 3 तो रूल्स देखे 3 वर्सेस में, और 4, 5, 6 में हमने वैष्णवों का एक रिलेशन देखा कैसे बनता है। तो संबंध, जैसे संबंध, तब तक संबंध नहीं है, नेक्स्ट पे नहीं आ सकते अभिधेय पे। तो अभिधेय क्या है? तो अभिधेय आज का जो वर्ष है वो 7वां और 8वां, ये 2 वर्सेस अभिधेय के ऊपर हैं। और फिर 9, 10, 11 ये प्रयोजन है कि हमारा इतना साधना का लक्ष्य क्या है। तो इसमें रूप गोस्वामी ने 7वें वर्ष के अंदर बताया है कि क्या है हमारा अभिधेय, अभिधेय क्या है। इसमें वर्ष पे जाएंगे तो देखेंगे वर्ड बाय वर्ड। तो इसमें कहते हैं स्यात्। स्यात् का मतलब होता है, इट हैपेंस, ऐसा होता है। क्या होता है? जब कृष्ण नाम, कृष्ण का नाम, चरित्र और भी कई चीज़ें जो भगवान से संबंधित है कि नहीं, वो कैसे हैं? सीताप्य अविद्या। हाँ, सीताप मतलब होता है कि दे आर वेरी स्वीट इन टेस्ट। शुगर कैंडी को सीता बोलते हैं, सीता। लेकिन होता क्या है? अविद्या के कारण, बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द सोल, उसकी अज्ञानता के कारण क्या होता है? वो इस नाम की मिठास को नहीं महसूस कर पाता है। तो यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि पित्त ओपतप्त रसनस्य नरोचिगानो। तो जैसे कि शरीर में पित्त बढ़ जाए, तो पित्त बढ़ने का मतलब होता है कि आपको जॉन्डिस हो गया है, राइट, लिवर की प्रॉब्लम है। तो जब पित्त बढ़ता है शरीर में, तो आपको शरीर में कोई भी मीठी चीज़ दी जाएगी तो मीठी नहीं लगेगी खाने में, लेकिन वो है खाने में। तो कहने का मतलब क्या है? होली नेम इज़ ऑल ट्रांसेंडेंटल, पावरफुल एंड मर्सीफुल, बट क्योंकि अविद्या इतनी स्ट्रांग है, हम उसको परसीव नहीं कर पाएंगे। तो ये बात थोड़ा सा ह्यूमिलिटी से स्वीकार करना पड़ता है कि होली नेम इज़ ऑल पावरफुल, बट वी डोंट हैव दैट एक्सेस टू एक्चुअली रिलिश एंड अंडरस्टैंड द होली नेम। ये पहली पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ह्यूमिलिटी से इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे और यही सोचेंगे कि हमारे प्रोसेस में कमी है या किसी और चीज़ में, तो इट डजंट ब्रिंग्स अ सोल्यूशन। लेकिन क्या सोल्यूशन दे रहे हैं रूप गोस्वामी? किंतु, लेकिन आदराद अनुदीनम खलु सेव जुष्टा। अगर हम आदर के साथ इसको रोज़ लें तो होगा क्या? सैव जुष्टा, ऐसा होगा, इट विल हैपन। तो व्हाट विल हैपन? स्वाद्वी क्रमाद भवति तद गदमूल हंत्री। ग्रेजुअली द टेस्ट विल अवेकन। स्वाद्वी क्रमाद, क्रम रूप से, सिक्वेंशली, ग्रेजुअली टेस्ट विल डेवलप इन द टंग। और होगा क्या? तदगत मूल हंत्री। जो मूल मतलब जो रूट पे प्रॉब्लम है वो क्या होगी? ख़त्म हो जाएगी, दैट विल फिनिश्ड ऑफ। तो स्वाद्वी क्रमाद भवति तदगत मूल हंत्री। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये वर्ष। इस वर्ष में बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला तो ये है अविद्या। अविद्या होता क्या है? और रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर जब क्लेश अग्नि का चर्चा किया ना, तो क्लेश अग्नि के अंदर उन्होंने ये बात मेंशन की है कि व्हाट इज़ द रूट ऑफ ऑल द सिंस। सारे पाप कार्यों के पीछे जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो बताते हैं सारे पाप कार्यों के पीछे जो मुख्य कारण है वो है व्यक्ति का अविद्या। और अविद्या क्या है? अविद्या क्या चीज़ है? अवर फॉरगेटिंग अवर रिलेशनशिप विद कृष्णा। भगवान के साथ हमें अपने संबंध को नहीं जानते। जब तक हम संबंध को नहीं जानते, मतलब कहने का मतलब तब तक हम अविद्या में हैं। तो हमें बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने संबंध को जागृत करना भगवान के साथ। एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप विद कृष्णा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड देन ओनली दिस अविद्या विल बी फिनिश्ड ऑफ। तो जब तक ये अविद्या है ना, तब तक ये नाम मिठास नहीं देगा। कभी देगा, कभी ऐसा लगता है मेंटल प्लेटफॉर्म पे कि बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम हैविंग गुड फीलिंग फैक्टर, बट वो हो सकता है भगवान की हेतु की कृपा हो कि कभी कभार ऐसा लग जाए, लेकिन निरंतर लगे, हर समय लगे, ऐसा नहीं है। और वाकई में किसी को टेस्ट है चैंटिंग का, तो प्रभुपाद बताते थे टेस्ट का मतलब होता है कि ही विल बी कंटिन्यूसली चैंटिंग, ही हैज़ नो अदर वर्क टू डू, उसको कुछ और करने को होगा नहीं।
है ना। जैसे बाबा जी लोग होते थे, बाबा जी लोग दिन भर जप करते थे, तो ऑब्वियसली उनको जप कर रहे हैं दिन भर तो कुछ टेस्ट है तभी। और इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि कृष्ण के संबंधित चीज़ों में कार्य करना, बेसिकली एनीथिंग रिलेटेड विद कृष्णास पर्पस। तो जैसे प्रीचिंग है, और इवन एनीथिंग यू आर डूइंग फॉर प्रोपोगेटिंग दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहने का मतलब इन चीज़ों में तो चलो हमें अपने अपने गुणों के हिसाब से कुछ टेस्ट मिल जाता है कि किसी को रजोगुण होगा तो मैनेजमेंट अच्छा लग जाएगा, कोई थोड़ा सात्विक होगा उसको टीचिंग अच्छी लग जाएगी। लेकिन चैंटिंग एक ऐसा वो है, बेसिस है, ऐसा एक बेस है एक्चुअली, जिस पे कि आप एक्चुअली में देख सकते हो कि वाकई आप कितना स्पिरिचुअल हुए हो अल्टीमेटली। दैट्स द एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म ऑफ चैंटिंग ऑफ होली नेम। अब कई लोग इसको आर्टिफिशियली ज़बरदस्ती उस प्लेटफॉर्म पे जाने का, पहुंचने का प्रयास करते हैं, एंड दे ट्राई टू शो दैट दे आर एडवांस्ड, बट इट इज़ नॉट सो। यहाँ रुचि आनी चाहिए। आप रुचि के बिना नहीं होगा एनीथिंग। जब तक रुचि नहीं विकसित की ना, तब तक वो चीज़ आगे जाएगी नहीं। तो रुचि कैसे विकसित की जाए वो पे बात करेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है ना। रुचि कैसे विकसित की जाए, और ये जो वर्ड है आदर, इस पे ज़्यादा बात करेंगे कि अनुदीनम तो हम कर ही रहे हैं। अनुदीनम, वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अनुदीनम, बट आदर क्या होता है, हरिनाम का आदर करना क्या हुआ। तो एक्सटर्नली थोड़ा हम समझते हैं कि आदर करने का मतलब है कि सीधे बैठना, ध्यान से नाम बोलना, सुनना, तो ये सब ठीक है, बट ये आदर का बहुत ही बेयर मिनिमम लेवल है। एक्चुअली मैं आदर के विषय में और हरिनाम के विषय में बहुत विस्तार से एक ग्रंथ है जिसका नाम है हरिनाम चिंतामणि, जो कि श्री भक्तिनाथ ठाकुर ने लिखा है, और इसमें चैतन्य महाप्रभु और नामाचार्य हरिदास ठाकुर के बीच में वार्ता है। तो ये जो वार्तालाप हुआ है ना, इसके अंदर बहुत सारे तत्व दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। तो सबसे पहले तो प्योर होली नेम के विषय में बताया है हरिदास ठाकुर ने कि जो भगवान का शुद्ध नाम होता है, किस प्रकार से जीव को भगवान के संपर्क में लाता है, संबंध बनाता है, और उसको वो पूर्ण आनंद की अनुभूति देता है। तो बहुत सारी महिमा इसके अंदर आपको मिलेगी भगवान के शुद्ध नाम की। अब अनादर क्या है, अनादर है उससे एक लेवल नीचे, और वो अनादर कहलाता है नामाभास। नामाभास को अनादर बोला गया है क्योंकि वो टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है ना। कैसे कहते हैं, एक बात बोलते हैं यहाँ पे हरिदास ठाकुर, नामाभास बुझाइला नामे शुद्ध हवे, अनायासे जीव नाम गुणे तारा यावे। सो कहते हैं कि वन अंडरस्टैंड्स द नामाभास विल अटेन प्योर चैंटिंग ऑफ द होली नेम। जब आप नामाभास को समझेंगे ना, तब आप भगवान के शुद्ध नाम तक पहुँच पाएंगे। एंड बाय द मर्सी ऑफ द होली नेम द सोल विल क्रॉस ओवर द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। तब जाकर के व्यक्ति क्या होगा, मृत्यु और जन्म के सागर से निकल पाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है, इसको नामाभास को पहले जानते हैं और फिर नाम अपराध, क्योंकि प्रभात भी यहाँ पे परपट के अंदर ये चीज़ एम्फसाइज कर रहे हैं कि जब तक ये 10 ऑफेंसेज हम करते रहेंगे नाम के प्रति, तब तक हम क्या है, सूर्य समान जो भगवान का नाम है ना, उसको देख नहीं पाएंगे। और जब तक देख नहीं पाएंगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी नहीं। दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो नाम आभास क्या होता है, ध्यान समझिएगा। नाम आभास होता है कि सूर्य रूपी नाम जो है वो आकाश में तो है, लेकिन आपके समक्ष वो ढका हुआ है दो कारण से। एक कारण बोलते हैं वो बादल है, उसके सामने बादल आ गया है, और दूसरा कारण से ढका रहता है जब आसपास कोहरा हो जाता है, फॉग। ये दो कारण है, ठीक है ना। ये दो कारण से आपको सूर्य साफ साफ नहीं दिखेगा, दो कारण। और अपराध तो मतलब अंधकार ही है, सूर्य है ही नहीं। दोनों में फ़र्क समझिएगा, नाम आभास और नाम अपराध। नाम अपराध मतलब आप रात के अंधेरे में, सूर्य आया ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, सूर्य आ चुका है लेकिन किसी कारण से वो थोड़ा सा ढका हुआ है। देखिए क्या क्या है। तो यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे कहते हैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहते हैं, कृष्ण नाम सूर्य चित्त गगने उठिला, कुझटिक मेघ पुना तहारा ढाकिला। So when the sun of the holy name rises in the sky of the heart, these clouds and fog again cover it. ये भर देते हैं। किस चीज़ से भरता है? जीवेर अज्ञान और अनर्थ सकल, कुझति का मेघ रूपे है तो प्रबल। तो कहते हैं कि एक जीवात्मा की जो अज्ञानता होती है और अनर्थ होते हैं, उनको कंपेयर किया गया है बादल और कोहरे से, है ना। आए कहते हैं, ना मेरे यही चित्त स्वरूप ताहा नहीं जाने,
से अज्ञान को जाति का अंधकारे आने. So when the soul does not understand the spiritual nature of the holy name, the fog of ignorance brings darkness. है ना. जब जो जीवात्मा होती है, जब तक वो आध्यात्मिक भगवान के नाम को नहीं समझती है, तो ये जो इग्नोरेंस का एक कोहरा है ना, वो क्या करता है, अंधकार लेकर के आता है. अच्छा, आगे कह रहे हैं, जीव चित्त स्वरूप बोली नाही यार ज्ञान, माया जड़ाश्रय तारे सतत अज्ञान. A soul who does not understand his own spiritual identity as a soul takes shelter of Maya. He is always in ignorance. अब बताना शुरू करेंगे ये मेघ होते क्या हैं. पहले मेघ देखते हैं. मेघ मतलब बादल कौन से हैं. तो बादल 3 प्रकार के यहाँ बताते हैं. कहते हैं असत तृष्णा हृदय दौर्बल्य अपराध अनर्थ है सब मेघ रूप करे बाढ़. तो अनर्थ किन 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान समझिएगा. पहला होता है असत तृष्णा. असत तृष्णा होती है भौतिक वस्तुओं के पीछे भागना, भौतिक चीज़ों के पीछे भागना. पहले पॉइंट ये देखो. एक होता है, एक है डिज़ायर एग्जिस्ट करती है आपके हार्ट में, और किसी के हृदय में डिज़ायर एग्जिस्ट करती है, लेकिन उस डिज़ायर के पीछे भागना, प्रयास करना, प्लान बनाना, वो कंडेम्ड है. वो जब तक तृष्णा रहती है हृदय में ना, तब तक कृष्णा नहीं आते हैं. याद रखना, तृष्णा और कृष्णा खाली पहले लेटर का फ़र्क है. एक में त है, एक में क है. तो जब तक हृदय में तृष्णा रहती है तो कृष्णा नहीं आते हृदय में. तो तृष्णा मतलब होती है प्यास भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की. कुछ भी हो सकता है. नेम है, फेम है, पोजीशन है, पावर है, पैसा है, रेपुटेशन है, स्त्री है, पैसा है, जन है, पता नहीं क्या क्या है, बहुत लंबी लिस्ट है ये. तो जब तक ये तृष्णा रहती है ना, तो होली नेम नहीं राइज करता. होली नेम इज़ अ पर्सन, ही कैन डिटेक्ट योर हार्ट. भगवान का नाम क्या है, एक व्यक्ति है, और व्यक्ति हृदय को देख सकते हैं. आप कोई भी देख सकता है. आप भी किसी से मिलो, बात करो, तो सामने वाले के क्या भावनाएं समझ जाते हैं हम भी. इतना कठिन तो है नहीं. थोड़ा सा 2 मिनट बात करो या 2 मिनट बाद में करो, खाली चेहरे की फेशियल एक्सप्रेशन देख के आप समझ जाओगे सामने वाला आपके प्रति कैसी भावना रखता है. तो वो तो भगवान का नाम है, वो देख सकते हैं हृदय के अंदर क्या है. और हृदय के अंदर जब असत तृष्णा है, तृष्णा बनी हुई है, तो हरि नाम नहीं आते अंदर. और फिर आप जबरदस्ती कितना भी प्रयास करो, नहीं होता है. इट डजंट वर्क्स लाइक दैट. जोर जबरदस्ती नहीं चलती भगवान के साथ. दूसरी चीज़ यहाँ पे कहते हैं हृदय दौर्बल्य. हृदय दौर्बल्य का मतलब होता है, हृदय इतना दुर्बल होता है कि जैसे ही उसके सामने इंद्र तृप्ति की सुविधा मिलती है, इंद्र तृप्ति का उसको मौका मिलता है, वो फिसल जाता है, रोक नहीं पाता है हृदय को. बात समझे. तो हृदय इतना कमज़ोर होता है. तो जब हृदय इतना कमज़ोर है तो भगवान कैसे बैठेंगे आके. भगवान बैठेंगे तो हृदय और टूट जाएगा उसका, नहीं. तो हृदय बहुत दौर्बल्य है उसका. तीसरी चीज़ होती है अपराध, जिस पर हम डिटेल में बात करेंगे. तो ये होता है, ये इसके कारण क्या होता है, इन अर्थों के कारण जो पूरा का पूरा ये जो सूर्य समान भगवान है ना, सूर्य समान जो ईश्वर हैं, ये क्या हो जाते हैं, ढक जाता है नाम, ये नहीं दिखता अपने को. आइए कहते हैं ना अपराध. पहला है असत तृष्णा, दूसरा हृदय दौर्बल्य, तीसरा है अपराध. अब बताते हैं कि जब ये नाम करते हैं तो एक्चुअली मेघ और जो फॉग है ना, उसको एक में ही कवर किया हुआ है. और बताते हैं कि नाम सूर्य रश्मि धा के नामाभास होय, स्वतः सिद्ध कृष्ण नाम सदा आच्छादय. So when these clouds block the light emanating from the sun of the holy name, it is called Namabhas. However, the holy name of Lord Krishna, which is perfect in itself, is always uncovered. तो मतलब ये ढक गया ना, बादल से ढक गया हो, चाहे वो कोहरे से ढक गया हो, तो वो क्या हो गया, नाम आभास हो गया. वो लेवल क्या है, अनादर है. अनादर है ये नाम का. ये नाम का सही वर्शिप नहीं है. आदर है जब आप शुद्ध नाम लेते हो, अनादर ये होता है. पहला पॉइंट. तो कहते हैं कि हाउएवर, कहते हैं आगे कि साधक यद्यपि पाए सद्गुरु आश्रय, भजन नैपुण्य मेघ आदि दूर होए. अगर एक साधक को ना क्या हो जाए, सद्गुरु आश्रय, एक ऐसे गुरु का आश्रय प्राप्त हो जाए जो उसको भजन सिखा सके, तो भजन में जब निपुण हो जाएगा ना, तब ये मेघ क्या होंगे, हट जाएंगे. अभी गुरु क्या सिखाएंगे भजन में, हमें कई बार समझ में नहीं आता है. एक बार गुरु से दीक्षा मिली गई, अब क्या अपना माला ही तो करना है. तो अर्थ यहाँ पे ये होता है इसका कि जब हम जप करते हैं, साधना करते हैं,
हमारी अपनी एक रिफ्लेक्शंस होती हैं, हमारी एक थॉट होती है नाम जप के पीछे। तो जो थॉट होती है नाम जप के पीछे, तो वो हमें सीखना चाहिए। तद्विधि बड़ी पाते हैं न परि प्रश्न न सेव्या, इसके माध्यम से गुरु से, कि मैं कैसे वो शुद्ध चेतना विकसित करूं। क्योंकि चैंटिंग ऑफ होली नेम इज़ नॉट अ मैकेनिकल एक्टिविटी, ये मैकेनिकल नहीं है, इसको आप मैकेनिकली करते रहो और इट विल वर्क। आपको पैशनेस दे देगा फॉर श्योर। नामाभास का आगे स्थिति बताया हुआ है कि आपको अच्छी खासी पीटी मिल जाएगी, पूर्णता मिल जाएगी, आप एक अच्छे स्वर्ग में पैदा हो सकते हो, इंद्र के बीच में जन्म ले सकते हो, ऊँचे लोक में जा सकते हो, लेकिन शुद्ध भक्ति तक नहीं पहुँच सकते। शुद्ध भक्ति के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। और शुद्ध भक्ति के लिए एक्स्ट्रा क्या है वो भी आगे देखते जाएंगे हम। तो इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण बात क्या है कि उसको भजन करना चाहिए एक एक्सपर्ट स्पिरिचुअल मास्टर के अंतर्गत रह करके, ताकि वो चीज़ों को क्या कर सके, सीख सके। आगे कहते हैं मेघा कुजितिक गेला नाम दिवाकर प्रकाश हैया भक्त देना प्रेम वर। सो जब ये बादल और ये जो कोहरा है जो निकल जाता है, तो ये भगवान का नाम क्या है, हृदय में उदित होता है। टू सच ए डिवोटी द होली नेम देन गिव्स द गिफ्ट ऑफ प्योर लव फॉर कृष्णा। तब वो उसके हृदय में क्या होता है, भगवान का शुद्ध नाम प्रकट होता है और वो भगवान के प्रति उस प्रेम को प्राप्त करता है। राइट। फिर नामाभास की बहुत सारी अवस्थाएं बताई जाती हैं, सांकेत्य, परिहास्यम, स्तोभम, हेलनम, ऐसे करके अलग अलग अवस्थाएं होती हैं नामाभास की, जिनसे कि एक एग्जाम्पल अजामिल का भी आता है ना। अजामिल ने भी सांकेतिक नामाभास लिया था। सांकेतिक मतलब अपने पुत्र को बुला रहा था, नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ, समझ लो। तो नामाभास था, उसके अंदर ये सारे मेघ थे, बादल छाए हुए थे। बता अभी आगे क्या होता है इस नामाभास की स्थिति में भी ना व्यक्ति को कुछ आनंद की अनुभूति होने लग जाती है, और इस नामाभास को मुक्ति से भी ज़्यादा बेटर माना गया है, बेटर। इसलिए हरदास ठाकुर का जब इनका हुआ था वार्ता गोपाल चक्रवर्ती का, तो गोपाल चक्रवर्ती इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि एक खाली नामाभास से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उनको लगता है मुक्ति प्राप्त करने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, उनको जाना पड़ता है, आप देखो तपस्या करने जंगलों के अंदर, पहाड़ों के अंदर, इतना कुछ करना पड़ता है उनको, है कि नहीं। जब इतना कुछ करते हैं तब जाकर क्या होता है उनके अंदर, आप देखोगे तो ये मुक्ति प्राप्त करने की कुछ योग्यता प्राप्त होती है। और आप कह रहे हो कि छोटा सा खाली आपने नाम ले लिया, नाम का आभास कर लिया, आप मुक्ति प्राप्त कर लिए। तो हरदास ठाकुर अपने वर्जन पे एकदम वो थे, फिक्स थे, उनका विश्वास था कि नहीं ये बात जो मैंने बोली एकदम सत्य है। इसलिए महाप्रभु ने हरदास ठाकुर को ये टाइटल दिया था नामाचार्य का, क्योंकि नाम के तत्व को अगर कोई अच्छे से जानता था तो वो थे हरदास ठाकुर। हरदास ठाकुर ने फिर वहाँ स्थापित किया कुछ शास्त्रों के प्रमाण से भी, लेकिन गोपाल चक्रवर्ती सुनने को तैयार नहीं था। परंतु कत्वा जाकर हम देखते हैं कि किस प्रकार से गोपाल चक्रवर्ती का नाक गल जाता है और फिर कोड़ का रोग हो जाता है उसको। नॉनदलेस द स्टोरी वॉज ऑल अबाउट एस्टैब्लिशिंग दैट होली नेम इज़ सो पावरफुल, भगवान का नाम क्या कर सकता है, हमें इस संसार से डिलीवर कर सकता है। ये बात बोलने की नहीं है, ये खाली ऐसे नहीं हर बार बोला जाता है इसको, ये सत्य है। अब पॉइंट है कि हमें इसको सत्य को जल्दी से जल्दी जीवन में रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको रियलाइज़ नहीं किया, जीवन ऐसे निकलता चला गया तो फिर विफल है, मनुष्य जीवन विफल है। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर लिखे हैं ना, हरि हरि विफल जन्म गोइनु मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खैनु, है कि नहीं, जानिया सुनिया विष खैनु, जानबूझ के मैंने जहर पी लिया, क्योंकि राधा कृष्ण ना भजिया। राधा कृष्ण का भजन कैसे करेंगे, हरे कृष्ण मंत्र जप करके तो होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, है ना, हरे एक संबोधन है। एक्चुअली मंत्रार्थ चिंतनम, मंत्र के अर्थों पे बहुत सारे गौड़ियाचार्यों ने बहुत सारी टीकाएँ दी हैं, तो एक दो हम थोड़ा सा उस पर भी चर्चा करेंगे एंड में, कि हम जब इंटरनली चैंट करते हैं तो व्हाट इज़ दैट मेडिटेशन व्हेन वी चैंट, क्या मेडिटेशन होता है जब करते समय, क्या हो सकता है। वही हमारा मेडिटेशन ना हो, लेकिन फिर भी क्या हो सकता है, ऐसे कुछ कुछ आचार्यों ने कुछ कुछ बातें बोली, जिसमें गोपाल गुरु गोस्वामी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। उन्होंने पूरा इस पर ग्रंथ लिखा हुआ है। तो कहने का अर्थ क्या है यहाँ पे कि व्हाट शुड बी द मेडिटेशन वाइल वी चैंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है इसको जानना। लेकिन उसको मेडिटेशन में जाने से पहले कुछ एक्सटर्नल्स भी हैं जिसको बड़ा ध्यान देना बड़ा आवश्यक है।
क्योंकि वो सबको फॉलो किए बिना इंटरनलाइज करना इतना आसान नहीं प्रोसेस को, इट डजंट हैपन। ऐसा नहीं आप अपना 5 बजे सुबह बीट बैग में हाथ डाले और 2 घंटे में पूरा घुमा दी 16 बार माला, और 16 बार मैं माला ले लूँ और घुमा दूँ इसको, है कि नहीं, इसको लूँ मैं ऐसे घुमा दूँ 16 बार, आगे घुमाऊँ, फिर कंप्लीट हो जाए तो पीछे घुमाऊँ। ये 16 बार घुमाने से क्या होगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। इट्स सो ईजी, नहीं इतना आसान है जितना लगता है। और साथ में अलग टेप चला दूँ मैं और एक रिकॉर्डर लगा दूँ मैं, तो टेप से नाम आ रहा है, रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होता जा रहा है, तो 2 घंटे के बाद रिकॉर्डर भक्त बन जाएगा, क्योंकि उसने हरि नाम पूरा सुना, एक भी ध्यान से एक भी मिस नहीं किया उसने, सारा नाम ध्यान से सुना। तो हुआ क्या उस टाइम पे, हाउ इट वर्क्स। तो चैंटिंग का भी थोड़ा सा विज्ञान पता होना चाहिए। नहीं तो बहुजन में करे यदि श्रवण कीर्तन फिर तब तो न पाए कृष्ण प्रति प्रेम न। तो ये बादल है, ठीक है, बादल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो ये बादल में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ बहुत है इसके अंदर, प्रतिबिंब नामाभास और फिर छाया नामाभास, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज हैं इसमें, मतलब हरिनाम चिंतामणि डिटेल आप पढ़ सकते हो इसमें। अब बात आती है कि अनादर का और डीपर लेवल क्या है। एक तो अनादर का हो गया नामाभास, और ग्रॉसेस्ट क्या हो सकता है। ग्रॉसेस्ट मतलब कि ये तो नामाभास भी नहीं है, और यहाँ तो उम्मीद ही नहीं कर सकते आप कुछ होगा, होपलेस कंडीशन है। तो ये है नाम अपराध। इसको रिचुअल की तरह नहीं पढ़ा जाता है रोज़, इस पर बहुत मेडिटेट किया जाता है, और पीछे एक दिन पहले रिफ्लेक्ट किया जाता है, क्या मैंने कोई अपराध तो नहीं किया 10 में से कोई। और हमेशा भक्त अंतर्मुखी होकर रिफ्लेक्ट करता है, क्या मेरे से ये 10 नाम अपराध तो नहीं होते हैं नाम के प्रति। और ये जो नाम है इसके प्रति प्रार्थना करता हूँ कि नहीं, मैं भगवान है। इसलिए रूप गोस्वामी ने जब लिखा था नामाष्टक, ये बहुत सुंदर बात लिखी है। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला दुतिपाद पंकज निराजित पंकजांता अय मुक्त कुल रूपास्य मानम तुम नाम संशयामि। बड़ी सुंदर बात बोलते हैं, निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला। जितने भी श्रुतियाँ हैं, जितने भी उपनिषद हैं, है ना, उसकी अगर आप, वो जेम्स के समान है, एक एक जेम्स हैं। वो जेम्स को अगर इकट्ठे करके एक माला बनाओगे, तो जो माला के जो कॉम्बाइंड तेज है ना, वो भगवान जो हरि नाम है उसके चरणों से निकलने वाली पदपाज पंकज पंजरांत, है ना, जो उनके चरणों से निकलने वाले जो पूरी की पूरी रेज हैं, उससे भी मैच नहीं खाएगा, वो हरि नाम इतना पावरफुल। इसीलिए क्या कह रहे हैं, अय मुक्त कुल रूपास्य मानम, है ना, जो मुक्त कुल, जो मुक्त हैं, मुक्त जीवात्माएँ हैं, वो इस हरि नाम को लेती हैं। हरि नाम को वास्तविक अगर कोई ले रहा है तो मुक्त जीवात्माएँ लेती हैं। लेकिन हरिनाम की इतनी कृपा है कि वो बद्ध जीवात्माओं को पास भी रहती हैं। इतनी कृपा है कि इतना अपराध करते हैं तब भी नाम नहीं जाता हमसे छोड़ के। सोचो बाप रे, ऐसा कौन सा जेंटलमैन मिलेगा जिसके साथ इतना आप गंदा व्यवहार करो फिर भी नहीं छोड़ रहा है आपको। इतना गंदा व्यवहार, अब सोचो ना, हमारे साथ कोई गंदा व्यवहार करें हम तुरंत छोड़ देंगे, कौन जाएगा बेइज्जती कराने इनके पास, है कि नहीं। हमारी तो इज्जत है कुछ, हम भी इज्जत वाले लोग हैं। लेकिन हरिनाम के साथ क्या है, इतनी बेइज्जती कर रखी है, इतने सालों से, इतने वर्षों से इतनी बेइज्जती कर दी उसकी, लेकिन छोड़ भी नहीं रहे भगवान। सोचो भगवान का नाम छोड़ने में कितना टाइम, बहुत जल्द। जिस दिन ऐसा अपराध किया ना, भगवान का नाम छूट जाता है। बताते भी ऐसा, मेरे को रेफरेंस नहीं आया याद अभी, एक लेक्चर मैंने सुना था। बताते हैं जब कभी भी आप 100 या 1000 अपराध के आसपास करते हो, है ना, तो बताते हैं कि आपसे 4 नियम टूटना शुरू हो जाते हैं। और जब आप 10,000 के आसपास अपराध शुरू कर देते हो करना, तो आपसे हरिनाम भी छूट जाता है, नहीं ले पाओगे हरिनाम आप। आपके पास हर एक जस्टिफाइड रीज़न होगा नाम ना करने का, शास्त्रों से होगा, आचार्यों की तरफ से होगा, हर तरफ से होगा। यू हैव ऑल द रीज़न। पीपल डोंट चैंट। बहुत लोग होते हैं दीक्षा लेने के बाद ही जप नहीं करते हैं, और फिर 4 नियम भी तोड़ते हैं, फिर कहाँ से उसका उद्धार होगा, सोचो ज़रा। तो बड़ा अभी से सावधानी बरतनी चाहिए, अभी से इन बातों को बड़ा गहन चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि भाई 10 अपराध तो नहीं करता मैं कहीं। तो आज हम डिटेल में बात करते हैं 10 अपराध होते क्या हैं, क्योंकि ऐसे तोते की तरफ तो रोज़ पढ़ देते हैं, कईयों को याद भी नहीं होता है।
तोते की तरह पढ़ना है तो पढ़ लिया तोते की तरह, तोता जैसे ये है ना, तोते को याद कराते रहो। तोता भी तो है नाम जप कर सकता है, नहीं कर सकता है वो भी जप कर लेगा। तोता के लिए नाम जप करना कौन बड़ी बात है, और हम कर रहे हैं तो फिर क्या फ़र्क है। हाँ, तोता अच्छी बात, तोता नाम अपराध नहीं करेगा कम से कम, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन हम करेंगे नाम अपराध, क्योंकि नाम मतलब बहुत चीज़ें इसके अंदर आती हैं। हम खाली सोचेंगे खाली लिटरली वर्ड्स को ब्ला 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 बोलने से नहीं हो जाएगा, और वास्तविक रूप से कुछ है। इज़ अ पर्सन एंड द पर्सन डजंट लाइक सर्टेन थिंग्स। तो क्या नहीं पसंद है व्यक्ति को, तो पहला देखिए क्या बोलते हैं। तो ये पद्म पुराण के अंदर मेंशन है, और यहाँ पे हरदास ठाकुर ने इसको डिटेल में बोला हुआ है। तो पहला अपराध क्या है सुनिए। सताम निंदा नाम न परमम अपराधम वितनुते यदा ख्यातिम यतम कथामसक्ते तद विग्रह। देखिए ध्यान से, सताम निंदा नाम न परम, ये सबसे बड़ा अपराध है नाम के प्रति। इसकी निंदा करना, सताम, सताम बोला है यहाँ पे, वैष्णव नहीं बोला है। सताम मतलब हर उस साधु की निंदा करना जो साधु है स्वभाव से। आप 5.5.2 पढ़िएगा ना परपट, तो वहाँ पे प्रभुपाद महत् सेवा द्वारा माहुर्मुक्तेश, हाँ, तद योषिताम संगी संगम, ये वाला वर्ष, आई थिंक यही वाला वर्ष है। इसके परपट, इसके ट्रांसलेशन में वर्ड मीनिंग में प्रभुपाद जब महत् शब्द, साधु शब्द का जो ट्रांसलेशन देते हैं वर्ड मीनिंग में, तो कहते हैं महत् मतलब वो हर साधु होता है जो अध्यात्म के पथ पे आगे बढ़ रहा है, भले वो निर्विशेषवादी क्यों ना हो, मायावादी क्यों ना हो, अगर वो साधु है तो। साधु का चरित्र क्या होता है? साधु का चरित्र ये होता है जो अध्यात्म में पूर्ण रूप से लीन है, आध्यात्मिक जीवन में लगा हुआ है, भले उसका प्रोसेस कुछ और हो, ये प्रोसेस विल बी डिफरेंट, बट स्टिल इफ ही इज़ अ साधु, साधु मतलब इम्पैकेबल कैरेक्टर, चरित्र ऐसा है इस पर उंगली नहीं उठा सकता कोई, ऐसा चरित्र होना चाहिए। कोई ऐसे चरित्र का व्यक्ति है और उससे व्यक्ति की निंदा करते हैं, गलतियां ढूंढ ढूंढ के, फॉल्ट फाइंडिंग कर करके, तो क्या कहते हैं? सताम निंदा नामनः परमम अपराधम वितनुते, वर्स्ट ऑफेंस एट द लोटस फीट ऑफ होली यथा ख्यातिम यथम कथम उसहते तद विग्रह विग्रह्यम। The Nam Prabhu who is identical with Krishna will never tolerate such blasphemous activities, even from one who passes as a great devotee. समझ रहे हैं बात को? नहीं करता है, तो ये बात समझनी चाहिए। तो मैं 10 अपना अपराध एक बार संस्कृत में पढ़ देता हूँ, ये मैं याद भी कर लेना चाहिए। तो क्या क्या है? साधु निंदा अन्य देवे स्वतंत्र मनन नाम तत्व गुरुवार शास्त्र विनिंदन हरिनामे अर्थवाद कल्पित मनन नाम बले पाप श्रद्धाहीन नाम अर्पण अन्य शुभ कर्मे कर्मेरा समान कृष्ण नाम एक कथा बलिल अपराध अविश्राम। तो ये बंगला में आप समराइज कर दिया हरदास ठाकुर ने। तो एक एक 10 का 10 पढ़ देते हैं। पहला साधु निंदा, ऐसे 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 छोटा है, छोटे में याद हो जाएगा, वैसे बड़ा भी याद कर लें, इसका जो ट्रांसलेशन है, बट छोटे में भी याद हो सकता है। तो पहला क्या है? साधु निंदा। देखो निंदा में 4 कैटेगरी आएंगी, ये चारों की निंदा नहीं करनी चाहिए। पहले साधु निंदा, दूसरा है अन्य देव, अन्य देवताओं की निंदा करते हैं। भाई अन्य देवताओं की पूरी पोजीशन है, ठीक है आप प्योर डिवोटी हो गए हैं मालूम है, लेकिन बाकी लोग भी कुछ हैं, बाकी लोग भी तो कुछ हैं कि नहीं। शिव जी भी हैं, ब्रह्मा जी, भगवान ने इनको भेजा है ना, भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। जैसे हम लोग प्योर डिवोटी हैं, किसी को समझते नहीं है, न शिव जी, न ब्रह्मा जी, न दुर्गा माता, न काली माता, न हनुमान जी, सब कुछ हैं डेमी गॉड्स, डमी गॉड्स, नॉट डेमी, दे डमी गॉड्स। हम प्योर डिवोटी हैं, हम प्योर डिवोटी, वो क्या हैं? डमी गॉड्स हैं। ठीक है, हम उनकी उपासना नहीं करते हैं, हम उपासना नहीं करते, ऑब्वियस हम उपासना नहीं करते हैं, हमारे उपास्य नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम निंदा करें उनकी, उनको तिरस्कृत करें। भाई भगवान ने उनको एम्पावर किया ना, भगवान ने उनको वो पोजीशन दी है, सो वाई नॉट टू एटलीस्ट रिस्पेक्ट देम। हाथ जोड़ने में क्या चला जाता है? किसके किसके आगे हाथ जोड़ते हैं दुनिया में? हम नहीं जोड़ते हैं। चपरासी के आगे हाथ जोड़ते हैं, भैया हमारा काम करा दीजिए, उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, इसके आगे हाथ जोड़ते हैं, हर आदमी आगे हाथ जोड़ते ही हैं। अपना काम कराना होता है तो कहाँ नहीं हाथ जोड़ते हैं? डॉक्टर साहब हमारे ये कर लीजिए, पुलिस वाले के आगे हाथ जोड़ेंगे, वकील के आगे हाथ जोड़ेंगे, ऐसे गंदे गंदे लोग आगे हाथ जोड़ते हैं। थोड़ा देवताओं के आगे हाथ भी जोड़ लिया तो इसमें कौन सा अपराध कर दिया?
हाँ, मांगो मत कुछ, और मांगते हो तो आपकी भक्ति खत्म होती है हृदय से। उपासना मत करो उनकी, निंदा नहीं कर सकते। फिर हाँ, अन्य देव स्वतंत्र नाम, ये तत्व संबंधित है। अन्य देव स्वतंत्र मानना, और फिर नाम तत्व गुरु और शास्त्र विनिंदन, गुरु और शास्त्र दोनों की निंदा। बात समझे? गुरु और शास्त्रों की दोनों की निंदा करना। और निंदा क्या? गुरु की बात ही नहीं मानना। गुरु की निंदा मतलब गुरु की बात ही नहीं मानना। गुरु ऐसे ही बनाते हैं, काम चलाओ लोग, बस काम निकालना है भाई, क्या बना के आ जाएगा, बना लो गुरु, कोई दिक्कत नहीं है। तो अवज्ञा। और शास्त्र निंदा, शास्त्र पढ़ा है नहीं, निंदा ऐसे ही कर देता है। भाई तुम पहले पढ़ो तो क्या लिखा है, ऐसे ही कुछ भी मन में आकर बक दोगे। तुम्हें पता है क्या लिखा है उसके अंदर? कोई पुराण का नाम लो, वहाँ से कुछ कोट करो, अरे ये सब महापुरुष ने नहीं बोला। अच्छा क्या बोला है? अमल पुराण। तो चलो अमल पुराण ही बता दो, तुम ही बताओ। अगर तुम इतने बड़े महाभागवत हो तो अमल पुराण का कंक्लूजन ही बता दो ना, क्या है वो भी नहीं पता है तुमको, तो एक किताब खोल के पढ़ते नहीं हो। तो जब शास्त्र नहीं पता तो क्यों वो खोल रहे हो? तो मत निंदा करो, वैसे भक्ति नाश होती है। फिर क्या है? हरिनाम अर्थवाद कल्पित मनन, ये मान लेना कि सब कहने की बातें हैं, अर्थवाद, बहुत बातें बढ़ा चढ़ा के लिखी गई हैं। कैनवसिंग किया गया नाम को लेकर ही काफ़ी ज़्यादा, इतना कैनवसिंग ठीक नहीं है। सोचना ही तो है, और क्या है? यहाँ मनन लिखा है शब्द, आप बोलोगे थोड़ी ये सब, अंदर अंदर चलता है सब। अपराध सब अंदर ही से होता है, सामने से बड़ा भोला भाला बैठा होगा वो, लेकिन अंदर से क्या चल रहा है वो वही जानता है। इसलिए जो भक्त गंभीर होते हैं भक्ति को लेके, उनको इन सब बातों में बड़ा विचार मनन चिंतन करना चाहिए कि भाई ऐसी भावना तो नहीं रखता मैं अपने अंदर। किसको बोलने जा रहे हैं हम? किसी को बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, अंदर अंदर चलाया, सब कहने की बातें हैं। अच्छा बने रहो सामने सामने, लेकिन मन में चलता रहेगा तो क्यों नहीं फिर फ़ायदा में पहुंच रहा है? तो कुछ ना कुछ है, कल्पना है ना, ये कल्पना लगती है। भगवान का नाम कैसे बचा लेगा मेरे को? कल को मैं गड्ढे में गिर जाऊँ और कोई बचाने वाला नहीं मेरे को, मान लो ऐसा कुएँ में गिरूँ मैं और यहाँ कोई बचाने वाला नहीं मेरे को। अब बताओ, अब है विश्वास नाम पे? लो, भगवान आएंगे बचाने। सोचना कभी ऐसे किसी कुएँ में गिरूँ मैं जिसका कोई बॉटम ही नहीं है, दूर दूर तक अंधकार में पड़े हुए हो, तो कुआँ नहीं दिखेगा गाँव में। यहाँ सीवर लाइन खुली, आप गिर गए उसमें, ये उदाहरण देता हूँ आपको। कुआँ तो पता नहीं शहर में दिखेगा भी, गया कुआँ का ज़माना। मान लो सीवर की लाइन खुली है और आप चलते चलते जा रहे हो, गिर गए उसमें, कहाँ तक जाओगे नीचे पता नहीं। अब अटके हुए हो आप, सोचो आप अटक गए वहाँ पे, गंदा गंदा पानी आपके आसपास तैर रहा है, पी भी रहे हो आप उस पानी को। अब आप सोचो जरा, विश्वास है नाम पे? भगवान आएंगे बचाने? चिल्ला चिल्ली करेंगे बचाओ 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 बचाओ, कोई नहीं सुनने वाला। जब आप गिरे थे हो सुनसान सड़क थी, कोई गुजरेगा ही नहीं वहाँ से। सोचो आप, वहाँ गिरे, वहाँ कोई है ही नहीं अब दूर दूर तक। फिर रात में गिरे, अगले दिन सुबह तक कोई आएगा नहीं, 12 घंटे पड़े हो मान लो। कितना विश्वास चाहिए नाम पे? ये सही में नाम है, भगवान है, वो साक्षात भगवान है। जो गजेंद्र को विश्वास था, गजेंद्र ने बोला तो भगवान आए थे। तो विश्वास करो, ये सब खाली कहने की बातें नहीं है, हैव फेथ। फिर क्या कहते हैं? नाम बले पाप, नाम के बल पर पाप करना, बार बार वही काम करना, मतलब थक नहीं जाता आदमी। मतलब है तो तंग आ गया कई लोगों से, एक ही प्रॉब्लम बार बार लेके चले आएंगे, सालों साल से वही समस्या चली आ रही है, कब ख़त्म होगी ये सब यार? आप तो बंद करो, पूरा जीवन यही करना है बस। क्यों नाम भजन कर रहे हो फिर? वेस्टिंग योर टाइम ना, बंद करो इसको। वंस एंड ऑल। सनातन गोस्वामी ने छोड़ा तो छोड़ दिया, मल त्याग दिया तो त्याग दिया, उसको नहीं देखते बार बार। जब ठान लिया कि भजन करना है मेरे को, तो फिर क्या गंदगी में बार बार कूदना, जाके फिर कूदना, फिर गंदे काम करना, एक हैबिट बना लेना, और फिर भगवान के आगे आगे मुंह खोल के खड़े हो जाना, भगवान माफ़ करो। भगवान तो कर ही देंगे माफ़, पर नाम तो अपराध करेगा ना इसको। एक्स्ट्रा राउंड कर लेंगे हम, एक्स्ट्रा राउंड से हो जाएगा। एक्स्ट्रा राउंड क्या है? कोई पाव काट रहे हो बैठ के, एक्स्ट्रा राउंड कर लेंगे। हाँ, एक्स्ट्रा राउंड रुचि के स्तर पे करो तो अलग बात है कि रुचि है मेरे को नाम के प्रति, और तब मैं जब कर रहा हूँ। मैं पाप काटने के लिए नाम ले रहा हूँ, एकादशी आ रही है पाप काटने के लिए, पाप मोचनी एकादशी। मैक्सिमम लोग इसीलिए एकादशी रखते हैं, पाप का। ठीक है, मान लो पाप, कितना पाप काट लो, कब तक काटोगे? इतने पाप हैं, कब तक काटोगे इसको? अंत नहीं है ना। तो पाप करने की प्रवृत्ति को काटो पहले। तो तक पाप करने की प्रवृत्ति नहीं काटी ना, तो करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, चलता रहेगा, अंत ही नहीं भाई इसका।
अंत ही नहीं है। और इतने एडिक्शन होती है लोगों को, हैबिट्स इतनी गंदी गंदी होती है लोगों की, छूटती नहीं है। भक्ति में रहते हो नहीं छूटती। उसकी कॉज को तक नहीं ख़त्म करना चाहता है। बोले भाई वो जिस कॉज से तुम बार बार काम कर रहे हो वही बंद कर दो ना, वही ख़त्म कर दो। नहीं, आप समझ नहीं रहे कितना इंपॉर्टेंट है वो, तो कर भाई। तो कैसे बढ़ेंगे आप बताओ ना, कहाँ से रुचि आएगी, कहाँ से नाम आया, कहाँ से क्या प्रकट होगा। फिर कह रहे हैं अन्य शुभ कर्मेर समान। अन्य शुभ कर्मेर समान मतलब और शुभ कर्मों के समान समझना है इसको। नाम को शुभ कर्म जैसे करते हैं ना, घर में पूजा होती है और घर में ऑस्पिशियसनेस लाने के लिए करते हैं, शुभता लाने के लिए करते हैं, तो ये सब इस उद्देश्य से जप करना ये मन के अंदर होता है। तो ये है। फिर समान कृष्ण नाम, और फिर ऐसे व्यक्ति को नाम देना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्रद्धाहीन नाम अर्पण। ऐसे व्यक्ति को नाम अर्पण करना जिसमें श्रद्धा ही नहीं है, ज़बरदस्ती उसको नाम चिपकाओ जाके, और उसको नहीं करना। जब तो मत करो भाई, इसको प्रसाद खिलाओ, जब उसका श्रद्धा बढ़ेगा। क्योंकि श्रद्धा कैसी होती है ना, जितना पुण्य होगा उसी हिसाब से श्रद्धा होगी आपकी। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है ना, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य व्रतम राजन विश्वास नैव जायते। तो जितना पुण्य होगा, स्वल्प पुण्य, जिसका पुण्य कम होता है इन चीज़ों में विश्वास नहीं होता उसको। महाप्रसाद में भगवान के नाम में, ब्राह्मणों के अंदर, वैष्णवों के अंदर, तो उसके पुण्य बढ़ाने चाहिए। उसके पुण्य जब बढ़ेंगे तब उसको विश्वास आएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि आप जबरदस्ती किसी को नाम देते हो उसके नाम में श्रद्धा आ जाएगी। उसके लिए उसके पायसनेस, पिटीनेस को बढ़ानी पड़ेगी, उसकी पुण्यता को बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए दिमाग लाना पड़ता है। और एक लास्ट वन है कि ये जो अपना नाम होता है, एक कथा बोलिले अपराध अविश्राम, है ना। कहने मतलब है कि ये सब नापराध होते हैं, और 10वां नापराध है कि इतना कुछ जानने के बाद भी क्या है, अपनी आसक्तियों को बनाए रखना, अहम ममत्व की भावना को बनाए रखना। तो हम डिटेल पे इस पर एक एक करके आते हैं। तो अब है पॉइंट कि क्या है, व्हाट इज़ साधु निंदा। तो साधुओं के कुछ गुण मेंशन किए गए हैं भागवतम में 11वें स्कंद के अंदर, और ये भगवान खुद मेंशन करते हैं उद्धव को। ये साधु के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, वो दयालु होता है स्वभाव से, सहिष्णु, समद्रोह शून्यवर्ता, है ना। सम मतलब इक्वल टू ऑल, और इसके अलावा द्वेष नहीं होता है हृदय में, फ्री ऑफ हेट्रेड, ट्रुथ, सत्यसार, विशुद्ध आत्मा, परहिते रता, है ना। ऐसे बहुत सारे गुण यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। जब ये साधुओं के अंदर गुण होते हैं ना, तो इसी से हम पहचान सकते हैं कि वो साधु है ना। ये साधुओं के गुण हमें पहचान में आ जाते हैं। अभी क्या होता है, इन साधुओं में भी बहुत सी कैटेगरीज होती हैं। कोई पर्टिकुलर आश्रम के अंदर है, अब ये नहीं खाली ब्रह्मचारी और सन्यासी साधु होते हैं, एक गृहस्थ भी साधु होते हैं। इसलिए आप लिखा है गृही ब्रह्मचारी वन प्रस्थ न्यासी भेदे शूद्र वैश्य क्षत्र विप्रो गणित प्रभेदे। तो 4 प्रकार के डिवीज़न है वर्ण और आश्रम के हिसाब से। और कहने का मतलब है इन सब डिविजन्स के अंदर साधु हो सकते हैं। साधु का मतलब ये नहीं है कि जो लाल कपड़ा पहना है वही साधु है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई साधु हो सकता है। तो महाप्रभु ने उनको सिखाया था कि इन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया था कि पहले तो जल्दी जल्दी बंदर मत बनो, अपने जहाँ जिस स्थान पे हो उसी स्थान पर रहो। बंदर बनने का मतलब है मरकट वैराग्य छाड़ा लोक देखाइया यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त होया। ये बंदर मत बनो। बंदर होता है क्या है ना, बंदर होता नंगा है, बाहर से दिखाएगा कि कितना रेनाउंस्ड हूँ मैं, और अंदर से वो सब यही काम करता है, बदमाशी वाले, है कि नहीं। तो महाप्रभु ने मना किया कि जहाँ हो जैसे हो क्या करो, जो कुछ आपको भगवान ने दैव के द्वारा, दैव मतलब कि जो कि डेस्टिनी के द्वारा दिया है, उसको एक्सेप्ट कर लो और उस जगह पे पोजीशन पे रह करके लाइफ को एग्जीक्यूट करो। बंदर बनने का मतलब क्या है ना, जब तक नेचुरली रिनाउंसिएशन ना आए, फोर्स रिनाउंसिएशन वर्क नहीं करती, नेचुरल रिनाउंसिएशन। तो नेचुरल रिनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है। और करो क्या, अंतर निष्ठा करो, बाह्य लोक व्यवहार, अंदर क्या करो, निष्ठा रखो भगवान के प्रति, और बाह्य रूप से क्या करो, लोक व्यवहार। लोक व्यवहार मतलब जैसे नॉर्मल डीलिंग्स होती हैं, है ना, लोक व्यवहार। बाहर मत दिखाओ ज़्यादा शुद्ध, उल्टा करते हैं लोग, अंदर होता कुछ नहीं है, बाहर शुद्ध भक्त दिखाते हैं अपने को, जस्ट अपोजिट। यही करते हैं कि नहीं, जो लोग जितने खाली होते हैं यही काम करते हैं। लोक व्यवहार पता नहीं होता है,
कैसे बात करना है, कैसे डील करना है, कैसे एटिकेट होना चाहिए। अंदर पूरा मटेरियल खाली है और बाहर से भक्त। ये होता है, ये उल्टा है। महाप्रभु क्या कहना चाह रहे हैं कि अंदर क्या करो, अंदर निष्ठा पैदा करो, अंदर भक्त बनो अंदर से, बाहर लोग व्यवहार करो। और मरकट क्या करेगा बंदर? बाहर से दिखाएगा और अंदर से खोखला होगा, है कि नहीं? मंदिर जा रहे नाउस कौन है? कपड़ा भी नहीं पहनता, बताओ। हो सकता है धोती कुर्ता पहन के सोचे काफ़ी नाउस हो गए हम के लिए बोलते वैष्णव ड्रेस में, ये वैष्णव ड्रेस होता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये वैदिक ड्रेस होता है। वैष्णव तो कुछ पहनते ही नहीं थे। ऋषि गोस्वामी देखोगे तो वैष्णव ड्रेस में आइएगा प्रभु जी आप लोग। वैष्णव नहीं, इसको वैदिक ड्रेस बोलते हैं या भारत का संस्कृति बोलते हैं। सांस्कृतिक कपड़े में आइए, ये शब्द होने चाहिए। अपने सांस्कृतिक कपड़ों में आइए, है कि नहीं? संस्कृति है हमारी ना, ये संस्कृति। भारत भूमि ते लिए मनुष्य जन्म जान। मनुष्य भारत में इतना सौभाग्य है जहाँ संस्कृति बचपन से मिली है देखने को। पैंट शर्ट नहीं मिला है, पतलून डाल के चले आओ, है कि नहीं? पहनो, धोती कुर्ता पहनो, कोई शर्म लिहाज त्यागो, कुछ नहीं होने वाला है। कोई नहीं हंसेगा, कोई नहीं मजाक बनाएगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, वो रिस्पेक्ट करेंगे। पंडित जी कहाँ जा रहे हैं आप, है कि नहीं? ये पॉइंट है। तो मरकट, तो इस प्रकार से महाप्रभु ने बहुत सारी शिक्षाएं यहाँ पे बता रहे हैं कि दी हैं साधु निंदा के ऊपर। और बताया कि बस एक समय सब्सटेंस क्या है कि जो कोई भी भगवान का नाम लेता है ना, एनी वन टेकिंग द नेम ऑफ कृष्णा, वी शुड नॉट क्रिटिसाइज देम अननेसेसरली। क्रिटिसिज्म होता है किस आधार पे है? तो कहते हैं वैष्णव जाति यार पूर्व दोष धोरे, काड़ी चित्त का दोष देखी यही निंदा करे, नष्ट प्राय दोष लया करे अपमान, यम दंडे कष्ट पाए से सब अज्ञान। तो वो व्यक्ति जो वैष्णवों को क्या करता है? क्रिटिसाइज करता है। किस बेसिस पे? उनकी जाति के आधार पे, है ना। अब हो सकता है आज की डेट में हम जात बिरादरी पे ना करते हों, लेकिन कुछ उसकी बॉडी के हिसाब से कर दें उसको। मोटा है, पतला है, छोटा है, काला है, ऐसा है, वैसा है, हाँ ये बिहारी है, ये पंजाबी है, ये हरियाणवी है, ये गुजराती है, ये मराठी है, ऐसे कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड बोलते रहो उसको लेके। बोलते ही पीछे बैठ कर वो ऐसा है ना, मराठी है ना इसलिए ऐसा है। हम सब जगह घूम के आए हैं, पूरा भारत देख करके आए हैं हम। सारे मराठी ऐसे ही होते हैं ब्रो। तिलक लगाने से क्या हो जाएगा? गधा को तिलक लगा दो तो गधा तिलक थोड़ी लगाने से वैष्णव बन जाएगा। नेचर तो वही रहेगा ना। लॉजिक पे बात करते हैं लोग। हाँ बताओ, अगर गधे को नीचे से गधा जा रहा है, उसको तिलक लगा दो जाके नीचे, तो क्या होगा? गधा वैष्णव बन जाएगा? हैं? क्या बन जाएगा वो? गधा ही रहेगा। ऐसे डिस्क्रिप्शन आते हैं, ऐसे डिस्क्रिप्शन आप सुनोगे और स्पेसिफिक नाम लेके बोलते हैं। आप मान लो कोई प्रिंसिपल समझा रहे हो तो अलग बात है। आप कोई प्रिंसिपल समझा रहे हो, जैसे एक बार एक प्रिंसिपल समझा रहे थे भक्ति पद्म सौरभ प्रचारक महाराज, जब पहले कमल हुसैन बोलते हैं, तो स्त्री के विषय में एक चर्चा हो रही थी, गौरांग सभा क्लास चल रही थी। अब ये सुन के बुरा मत मानिएगा, जो मैं बोल जा रहा हूँ एज इट इज़ रिपीट कर रहा हूँ। तो उसने प्रकृति के ऊपर बताया था, स्वभाव के ऊपर बताया था कि स्वभाव होता है हर किसी का, और स्वभाव प्रकृति नहीं बदलती है जितना जल्दी, और वैष्णव गुण आने में समय लगता है, इतना आसानी से नहीं आता है। तो बढ़ती ब्लंट उन्होंने वहाँ पे वो बोला कि एक गधी है, वो गधी को तिलक लगा दो। तो गधी को तिलक लगा दो तो क्या मतलब गधी नहीं रहेगी? गधी रहेगी। तिलक लगाने से कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है। तो प्रकृति, हर चीज़ की प्रकृति रहती है, लेकिन उसकी दोष निंदा नहीं की जाती है। समझे? दोष है, कल ही तो बताया था ना कुछ, हर चीज़ के अंदर दोष है, बट उसकी दोष की निंदा नहीं करते। नॉट वी डोंट मेक दैट अ बेसिस टू स्टैम्प अ पर्सन। याद रखिएगा इस बात को। दिखेगा बिल्कुल स्पष्ट, कोई भी इसमें देखे छुप ही नहीं सकता ये चीज़, आप कितना भी छुपा लो। अब लोग इसी चीज़ को कवर करते हैं आज मॉडर्न डे में। मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर आइडेंटिटी छुपाते रहेंगे, समझ रहे ना। उसका नाम होगा जैक्सन नाम लिख लेगा वो आगे, और पुराना नाम ट्रेस करोगे मिलेगा जय किशन नाम था भैया उसका बिहार से आया था, जय किशन नाम था, यहाँ पे आकर जैक्सन बन गया वो। तो कहने मतलब क्यों चेंज करना भाई, खुश रहो, जय किशन नाम है, क्या दिक्कत? जय इतना अच्छा नाम है, जय किशन, भगवान की जय कर रहे हैं, वो जैक्सन बन गया आगे, चेंज हो जाता है वो और विदेश चला गया तो पूरा ही चेंज हो जाता है वो। हम लोग के यहाँ कहावत होती है, कहते हैं ये कौआ कितना भी हंस का चाल चले, जानते हो,
कौवा कितना हंस का चाल चले वो क्या कहलाएगा अंत में? कौवा कहलाता है, वो हंस थोड़ी कहलाएगा कभी। तो भारतीय भारतीय हैं, अंग्रेज अंग्रेज हैं, और जो जहाँ से वहाँ से, बस ख़त्म कहानी। अब इसका दोष निंदा नहीं करना चाहिए, और ये नहीं कहना चाहिए प्रभु ऐसा कर रहे हैं ना क्योंकि ऐसे हैं, ऐसे निंदा होती है एकदम स्मार्ट तरीके से। क्या ये समझ रहे बात को? देख कास्ट एक बेसिस यहाँ लिखा हुआ है। प्रीवियस फॉल्ट्स, उसने कुछ गलतियाँ की होंगी पास्ट में, सबसे हो जाती है कुछ गलती। प्रीवियस फॉल्ट्स कुछ न की, आपको पता है उस गलती के बारे में, और आप फिर उसका गुणगान करो, और मान लो अच्छा भक्त बनना भी चाहे तो बोला रही ये भक्त बनेगा। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर कहानी सुनाते थे नंगा पेंचो का। अब बचपन में बच्चे सब नंगे घूमते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कहाँ पैंट वैंट पहनते हैं, पैंट निकर कुछ नहीं पहनते, नंगे घूमते हैं। तो बच्चे ना गाँव में पेंचो था, नंगा घूमता था। अब भाई बड़ा तो होगा, धीरे धीरे बड़ा हुआ तो पैंट डाला उसने, पढ़ाई की उसने आगे जाके वो बैरिस्टर बन गया, बड़ा वकील बन गया वो। अब गांव वालों को हजम ना हो, हैं पेंचो पेंचो इतना आगे चला गया पेंचो क्या बन गया, पेंचो इतना बड़ा बैरिस्टर बन गया। तो विश्वास नहीं हो रहा गाँव वालों को, अरे वो ऐसे ही है, उसको ना सैलरी वाले नहीं मिलता होगा, ऐसे ही बन गया वो। पर आप कितना ही महान बन जाओगे, क्योंकि आपका प्रीवियस कंसेप्शन लोग को याद रहेगा ही। आप जितना ही महान भक्त हो जाओ, महाभागवत हो जाओ, घर वाले आपको वैसे ही देखेंगे। देखना आप घर में आप वही हो जो भी आपको बुलाते हैं। मैं डिवोटी घर गया था, ब्रह्मचारी हैं, बड़ा शौक था, मदर उनके पुराने नाम से बुलाती हैं उनको, उनका भौतिक नाम है, दीक्षित नाम से नहीं पुकारा। मैं बोल रही है तो बहुत विचित्र है, बोला नहीं मैंने कुछ, बट कंसेप्शन वही कैरी होते हैं। आप कितने बड़े भैया, वो कॉमन भाषा में कहना है कि घर का जोगी जोगड़ा सुना है, आर सब सिद्ध, इसे बड़े अच्छी अच्छी कहावतें हैं जो बहुत कुछ सिखाती हैं। कहने का मतलब का घर का योगी अगर होगा ना, अच्छा योगी है, सब कुछ है, उसको जोगड़ा बोल, जोगड़ा मतलब ऐसी फर्जी है, मतलब कितना ही भक्ति करे ऐसे ही है ये, आर सिद्ध, और कहीं का योगी है तो सिद्ध है। और घर की भाषा में भी कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब है। पॉइंट मतलब भाई उसका पास्ट को छोड़ दो, मत ध्यान रखो उस पास्ट का। फिर इस प्रकार से दोष का कीर्तन करते हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा कोई गधा अगर ऐसा कुछ करता है ना, तो उसको यमराज भी क्या करते हैं, बहुत दंडित करते हैं, बहुत पीड़ित करते हैं, इस प्रकार से। फिर आगे बताते हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हरिनाम चिंतामणि अपने आप में पूरा सेमिनार है, पूरा एक डिटेल में लिया जा सकता है, लेकिन अभी थोड़ा समय का वो है। तो दूसरा नाम व्रत क्या है, देखिए कहते हैं शिवस्य श्री विष्णुर्यथ गुणनामादि सकलम धिया अभिन्नम पश्येत स खलु हरि नाम हितकर। तो शिवस्य, देखो शिव जी का स्पेसिफिक नाम लिया यहाँ पे, देवताओं में किसी का भी नाम लिया जा सकता था, बस शिव जी स्पेसिफिक हैं। शिवस्य श्री विष्णुर, दोनों का नाम लिया, शिवस्य श्री विष्णुर यह गुण नामादि सकलम, हाँ, धिया अभिन्नम पश्येत स खलु हरि नाम हित कर। तो क्या अर्थ हुआ इसका, धिया अभिन्नम, अगर आप इन लोग को अलग समझते हो, शिव और विष्णु को अलग अलग समझते हो, या इसको एक ही समझते हो, दोनों चीज़ समझो बात को। इफ़ यू थिंक देम्स टू बी अभिन्न एंड ऑल्सो धिया, वन एंड डिफरेंट, दोनों समझते हो, तो गलत अंडरस्टैंडिंग है आपकी। फिर है क्या बीच में, पहले पॉइंट फिर से समझो। अगर उनको आप अलग अलग समझते हो और अगर उनको एक समझते हो, तो क्या है, ये अपराध करते हो आप। तो फिर हैं क्या, कौन है, तो ध्यान से समझना, भगवान शिव कृष्ण के गुण अवतार हैं, गुण अवतार हैं, मैंने पढ़ा है ना गुण अवतार, और वो गुण अवतार के रूप में ही देखना चाहिए। जैसे विष्णु को हम देखते हैं कृष्ण भगवान के एक पुरुष अवतार के रूप में, उसी प्रकार से शिव भी क्या हैं, गुण अवतार के रूप में, और इसमें कोई भेद नहीं रखना चाहिए। लेकिन इनकी उपासना नहीं की जाती है। तो उपासना होती है कि भाई खूब पूजा पाठ हो रहा है, रुद्राभिषेक हो रहा है, प्रदोष का व्रत आ गया, और प्रदोष के व्रत में खूब रुद्राभिषेक किया जा रहा है अलग अलग चीज़ों से, दूध से, गंगा जल से, गन्ने के रस से, होता है बाकायदा पूरा विधि है इसका करने का, और उन्हीं को सुप्रीम मान लेना। और इस पर बहुत सारे शास्त्रों में यही कन्फ्यूज़न है, क्यों इतना शैवाइट्स और वैष्णवाइट में लड़ाई है, क्योंकि सही में ये बात बहुत कन्फ्यूजिंग है समझना। पूरा एक शहर है दक्षिण भारत में, उसका नाम है कांचीपुरम, वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक है विष्णु कांची, एक है शिव कांची, एक ही शहर में दो मत हैं, शिव कांची विष्णु कांची, समझे बात को। है वैष्णवों का शहर, वो सारे वैष्णव हैं, लेकिन शिव कांची विष्णु कांची,
और सबसे ज़्यादा दिव्य देशम 108 दिव्य देशम में सबसे ज़्यादा दिव्य देशम एक शहर के अंदर ही है खाली, वो दिव्य देशम है दोनों जगह, शिव कांची में भी विष्णु कांची में भी है। तो कहने का मतलब क्या है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर, लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए, हम भगवान विष्णु की जब वर्शिप करते हैं तो ही इज़ द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज़। एक्चुअली जितने फिलोसफिकल माइंड के लोग होते हैं ना, वो हमेशा कॉज को ढूंढते हैं जीवन में, इस चीज़ के पीछे क्या कारण है, इस पर्टिकुलर चीज़ के क्या कारण है, कहाँ से ये चीज़ आई। ऐसे करते 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 जब जाते हो, मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं हूँ, मेरा शरीर मेरे फादर से लेट सपोज आया, इस शरीर के अंदर क्या क्या चीज़ें हो गई, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अब ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश कहाँ से आया, वो पीछे से कुछ आया, उसके पीछे से क्या था, उसके पीछे क्या था, ऐसे ट्रेस करते हैं। ये हमें नहीं ट्रेस हो पाएगा, फिर ट्रेस करते करते सांख्य के माध्यम से कहीं कहीं पहुँचते हैं। कहीं पे कंक्लूड कर देते हैं कि मेटल नेचर से आया हुआ है, कहीं पे कंक्लूड कर लेते हैं कि ब्रह्म से आया हुआ है, कहीं कुछ। उसी कंक्लूजन में एक पॉइंट पे शिव पे भी पहुंचते हैं लोग। बट पॉइंट इज़ ही इज़ नॉट द सुप्रीम, उनसे ऊपर हैं, देयर इज़ वन थिंग मोर अबव इट। तो जब आप ऐसे ट्रेस करते करते जाते हो, इसलिए ब्रह्मा ने इस बात को बोला कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इसलिए इसी बात को भगवान ने गीता में बोली, अपने विषय में भगवान ने गीता में बहुत बोला है। एक्चुअली ये बायोग्राफी है भगवान की, गीता अपने बारे में बहुत बोला है भगवान ने। किसी को भगवान के बारे में जानना है तो भगवान से ही सुनो कौन है भगवान। तो ये भगवान है, ध्यान से सुनिएगा उस बात को, दैट इज़ कृष्णा। और भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं आई एम द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। अब इस बात को अर्जुन ने भी सुना, बट अर्जुन ने विश्वास कर लिया, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, है ना, असितो देवल व्यास नारद, सबके नाम लिए। कौन कौन लोग हैं जो आपको अथॉरिटी मानते हैं, तो अकेले मैं नहीं था, बहुत से अथॉरिटीज़ आपको मानती हैं। तो कहने का मतलब है कृष्णा एंड शिवा, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन देम, बट नो डिफरेंस। तो डोंट थिंक दैट दे आर डिफरेंट और दे आर वन। वॉट द वर्ड यू यूज़ हियर इज़ नॉन डिफरेंट। ना हाउ इट कैन बी रियलाइज्ड, जस्ट बी पेशेंट एंड प्रैक्टिस भक्ति, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा शिव और विष्णु में क्या हो गया था। ठीक है, रिलेशन मतलब एक ही हैं, बस ये जान लो। तो नेवर कंसिडर, क्या लिखा है, टू कंसिडर नेम्स और डेमी गॉड्स लाइक लॉर्ड शिवा लॉर्ड ब्रह्मा टू बी इक्वल टू दिया और इंडिपेंडेंट भिन्नम, दोनों नहीं चलता साथ में। तो बीच की अंडरस्टैंडिंग है, लानी पड़ेगी। ये अंडरस्टैंडिंग अंदर ही डेवलप होगी समय के साथ। ये बहुत बड़ा है, क्योंकि कई बार में क्या होता है, या तो एकदम इस साइड पकड़ेंगे या तो उस साइड पकड़ेंगे, बीच का रास्ता नहीं पता है, तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। ठीक है, फेथ ना, देखो भगवान ने गीता में बोला ना 7 चैप्टर के अंदर, जिसका जैसा फेथ होता है उसी हिसाब से उस फेथ पे क्या करता हूँ, उसकी फेथ और श्रद्धा को बनाए रखता हूँ मैं पर्टिकुलर देवता के ऊपर। तो सब कुछ फेथ पे चलता है। तो फेथ कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, वो साधु संघ में ट्रांसफॉर्म होता है, भक्तों के संघ में ट्रांसफॉर्म होगा, उसकी बिना नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट वन। अब तीसरा है क्या, गुरु अवज्ञा, गुरु की अवज्ञा करना। तो उसमें बताते हैं कि गुरु इतने कृपालु होते हैं हमारे ऊपर कि ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान अजीब, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। कि ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 वो क्या हुआ, गुरु के पास आया और गुरु ने उसको बचाया। अब वो क्या कर रहा है, गुरु की बात ही नहीं सुन रहा है, कर वही रहा है जो उसको करना है। तो फिर गुरु क्यों अपनाया, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है, बताओ। गुरु अपनाने का सबसे बड़ा पर्पस है तस्मात् गुरु प्रबद्धेत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जब तक जिज्ञासा ही नहीं है जीवन में तो गुरु क्या बना के करोगे, ये बताओ। वाई विल मेक अ गुरु, गुरु प्रभात कहते हैं इज नॉट अ गुरु इवन गुरु, गुरु इज नॉट गुरु। गुरु मतलब गाय को बोलते थे, घर में जैसे गाय पाल लेते हैं दिखाने के लिए, वैसे हमने गुरु पाल लिया, फलाना फलाना उनके शिष्य हैं, और कोई लेना देना नहीं उसे, ना कोई जीवन में प्रश्न है मेरे, ना कुछ पूछना जाना है मेरे को। कुछ मैजिक कम कर जाएगा, क्योंकि मेरे को कुछ मिल गया ना, कंठी मिल गई, माला मिल गई, तो कुछ जादू काम कर जाएगा एक दिन मेरे ऊपर।
कोई जादू फादू नहीं है यार, सिंपल सी बात है। पढ़ाई जब तक नहीं करोगे, मान लो स्कूल में एडमिशन ले लिया मैंने, दीक्षा लेने का मतलब होता है स्कूल में एडमिशन लेना। स्कूल में आपका एडमिशन हो गया, क्लास पहली से पढ़ाई शुरू कर दिया आपने। अब आप सोचो कि बस बैठा रहूँगा मैं वहाँ पे, अपने आप क्लास 12वीं तक पहुँच जाऊँगा और डिग्री लेके निकल जाऊँगा, ऐसा होगा? पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे, पढ़ने के बाद टीचर से प्रश्न उत्तर करोगे, सीखोगे, तद्विधि पढ़ी पाते न परि प्रश्न ने सेव्या, तब बात बढ़ती है आगे। खाली एडमिशन लेने से नहीं होता है। और बहुत सारे डिवोटीज़ का यही कंसेप्शन है। क्या कंसेप्शन है? कि बस दीक्षा ले लो जी, दीक्षा लेना सर्व सिद्धि के समान है। मतलब आपकी सारी सिद्धि हो गई और आपने दीक्षा ले ली, तो दीक्षा का मतलब है आपकी शुरुआत हो गई है, आपने भजन प्रक्रिया स्वीकार कर ली है एक गुरु के निर्देश में रह करके। तो ये पॉइंट है गुरु अवज्ञा। तो कहते हैं आगे, दीक्षा शिक्षा भेदे गुरु दो प्रकार, उभय समान माना, अर्पिबे सुजन परमार्थ धन, अनायासे यदि चान। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु ये दो प्रकार के गुरु होते हैं, और दोनों को एक समान क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। इफ़ ही इज़ ग्लोरियस लाइक द मून, द स्पिरिचुअल मास्टर विल ईजिली गिव द मोस्ट वैल्यूबल ट्रेजर टू हिज सेंटली डिसाइपल। दीक्षा गुरु क्या करते हैं? दीक्षा गुरु मंत्र देते हैं। कृष्ण नाम मंत्र देना दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु तत्वदाता, वैष्णव सकल शिक्षा गुरु हया, सर्व शुभ भजनाहिता। तो कह रहे हैं क्या कि जो दीक्षा गुरु होते हैं वो मंत्र देते हैं, ठीक है ना? दीक्षा गुरु मंत्र देते हैं। और शिक्षा गुरु क्या करते हैं? कहते हैं उसको भगवान के विषय में कृष्ण तत्व लिखा हुआ है ना, शिक्षा गुरु तत्वदाता, शिक्षा गुरु तत्व प्रदान करते हैं। इसीलिए हर वैष्णव एक्चुअली कह रहे हैं यहाँ पे नामाचार्य हरिदास ठाकुर इज़ अ क्वालिफाइड शिक्षा गुरु। हर वैष्णव एक्चुअली अपने आप में शिक्षा गुरु है। इसीलिए हमें कोई ना कोई एक भक्त को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। आगे कहते हैं इसके विषय में, इसीलिए अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। और कई बार लोग आज्ञा ही नहीं मांगेंगे तो अवज्ञा होगी ही नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप बुक्स भी पढ़ रहे हो, क्वेश्चन आंसर भी कर रहे हो, और खाली औपचारिकता के लिए कर रहे हो, तो वो भी फ़ायदा नहीं देगा। अब कई बार मैंने देखा है जो स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं नई शिष्यों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए नहीं करते हैं, ऐसा पता है, जस्ट बी प्रोटेक्टेड, कि पता करेगा तो है नहीं कुछ, और बेकार का तीसरा ना अपराध लगेगा उसको, इससे अच्छा है उसको कुछ बोलो ही मत, जो कर रहा है करने दो उसको। मैंने ये अप्रोच भी देखा है। इंस्ट्रक्शन दोगे करेगा कुछ है नहीं, अब नहीं करेगा तो अपराध करेगा, तो बेस्ट क्या इंस्ट्रक्शन ही मत दो, जनरल बात बोल के छोड़ दो, देखो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है आगे। कई वक्त जब कभी कहीं जा रहे होते हैं, कुछ होता है तो आते हैं पूछने, बोले हमारे लिए कोई इंस्ट्रक्शन है? बोले कोई इंस्ट्रक्शन नहीं भाई। तुम बस माला करो और भक्तों के संग में बने रहो, बस इतना करो। ये भी इंस्ट्रक्शन नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये जो बोल रहे हैं ये भी इंस्ट्रक्शन नहीं है। पहली बात हमारी एडवाइस है, सलाह है, ये आपके लिए एक सलाह है। आप क्या कर सकते हो, चाहो तो, यदि आप चाहें तो, ये बोलना पड़ता है लाइन में, यदि आप चाहें तो गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप भक्तों का संग बनाए रखें, पहला पॉइंट। और इनाम जब ना छोड़ें। ये मैंने देखा था, प्रधान महाराज थे, ये लोग आए थे, दीक्षा के समय की बात थी, तो किसने थे, यशस्वी कृष्ण को ने पूछा था कुछ, तो महाराज ने बोला जो ये लोग बोल रहे हैं वो करो, मैं बोलूँगा तो भाग जाओगे। तो कुछ पूछ रहे थे, यशस्वी कृष्ण पूछ रहे थे, महाराज कुछ इंस्ट्रक्शन हमारे लिए। हमारा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। जो है उसको पालन करो पहले, इतना ज़्यादा निष्ठावान बनोगे दिक्कत हो जाएगा। तो ये समझे बात। तो ये तीसरा। चौथा क्या है, श्रुति शास्त्र निंदनम, श्रुति शास्त्र का निंदा करना। और श्रुति शास्त्रों के साथ क्या है ना, हर श्रुति शास्त्र तुमने पढ़ा है नहीं, हमें पता है, हम अपने शास्त्र पढ़ ले वही बहुत है। तो 108 श्रुतियाँ हैं, उसके अलावा फिर 18 पुराण हैं, उसके आगम बहुत सारे डिविजन्स होते हैं उसके। तो कहने का मतलब है कि कहीं भी शास्त्रों में कोई बात लिखी गई है ना, सीधे सीधे रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते उसको आप। वो बोला किसी संत ने, किसी साधु ने बोला है, कैसे बोला है, क्या बोला है, उसका हिस्ट्री पता हो, कहीं सुना हो, कुछ पता हो तो करना चाहिए। ऐसे नहीं कर सकते आप, यू कैनॉट से ये बेकार की बातें हैं, ये हैं, ऐसा है वैसा है, हम तो शुद्ध भक्त हो चुके हैं, सारे शास्त्रों से ऊपर उठ चुके हैं।
इतना ऊपर उठ गया कि बस वो वापस नीचे आ ही नहीं रहा है वो। कई बार लोग इतना ऊपर उठ जाते हैं उनको नीचे लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई नीचे कैसे लाया जाए उसको। तो शास्त्र ही पार कर दिया उसने। तो इसीलिए रूप गोस्वामी ने कहा है श्रुति स्मृति पुराण आदि पांच रात्रिकीर विधि विना एकांतिक हरिहर भक्ति उत्पाद है। वो उत्पाद है समाज के लिए। श्रुति स्मृति पे अगर आधारित नहीं है भक्ति ना, तो इसलिए हमारे आचार्यों ने कोई बात लिखी ना तो पीछे कोई श्रुति स्मृति कोट की उसके पीछे। रूप गोस्वामी की राइटिंग्स को देखना, कोई बात बोली, जैसे हरि भक्ति विलास पढ़ो आप। हरि भक्ति विलास में ऐसे अच्छा जप कैसे करना चाहिए उसके लिए 6 बातें बोली शिला सनातन गोस्वामी ने। तो जब बोला तो उसके पीछे शास्त्र कोट किया, पूरे आयुर्वेद के शास्त्र से कोट किया कि बॉडी ऐसे बैलेंस बना के रखना है। ऐसे बना के रखोगे तो फिर क्या होगा, जब अच्छे से कर पाओगे। अब निंदा करें हम आयुर्वेदिक शास्त्रों की, वास्तु की निंदा करें, ज्योतिष की निंदा करें, भाई आपको नहीं पता तो चुप रहो। और उसको मज़ेदार चीज़ क्या है, अपनी अथॉरिटी तो कुछ होती नहीं, प्रभुपाद का नाम लेके कोट करो। भाई प्रभुपाद ने भी इतना निंदा नहीं किया जितना हम कर रहे हैं, और निंदा किया ही नहीं एक्चुअली प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने कहीं पे भी अगर निंदा देखोगे ना, कभी किसी फिलॉसफी की, कभी किसी धारणा की जो कि गलत धारणा है उसकी की है, या गलत लोगों की है। बट जो एटर्नल साइंस एस्टैब्लिश्ड है शास्त्रों में, उसको नहीं कभी किया है। लास्ट मोमेंट पे प्रभुपाद भी देखोगे अब ना, तो बहुत उनका तबीयत जब ख़राब था तो उन्होंने भी नीलम स्वीकार किया था, नीलम पहना था, उनके हाथ में था, आज भी पुराना पड़ा हुआ है, भक्त से मैंने सुना था। तो कहने का मतलब इवन उधर ट्रांसलेटेड डायरी में भी चीज़ मेंशन की गई है, बताई गई है। तो कहने का अर्थ क्या है मेरा, यहाँ पे बड़ी सरल भाषा में बोलना चाह रहा हूँ कि ये सब शास्त्रों का खंडन नहीं कर सकते आप। किस आधार पे कर रहे हो आप, व्हाट इज द बेसिस, आप उसको ब्लास्फेम किस बेसिस पे कर रहे हो। आप पहले नॉलेज, उससे बेटर नॉलेज है तब कंडेम करो। हाँ, भागवतम अगर आप समझ गए हो, भागवतम का बेसिस है, भागवतम परम सिद्धांत है, तो उसके आधार पे आप कह रहे हो कि ये लोअर फिलॉसफी है, तो समझ में आता है। वो भी रिलेशन स्टैब्लिश करने आना चाहिए। लेकिन आप कर ही नहीं पा रहे हो, बस खाट के निंदा खाली किए जा रहे हो। इट्स द वेस्ट ना, इट्स द निंदा, ये अपराध है, गलत है। निंदा तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए। निंदा मतलब क्या होता है ना, पीठ पीछे बैक बाइटिंग जैसे करते हैं, क्रिटिसाइज़ करना, बोलना, ये सब चीज़ें होती हैं। ओके, लेट्स गो टू द 6th वन। तो अनादर, सोच लो इतने अनादर हैं, अब आदर से नाम कैसे लोगे। सोल्यूशन अनादर की बातें कर रहे हैं अभी हम, समझ रहे हो कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारा, सब समझ में आ रहा है ना। आदर के साथ रोज़ नाम लेंगे तो फ़ायदा होगा। तो अनादर क्या, पहले वो जान रहे हैं हम, और फिर आदर होगा क्या वो। हाँ, हाँ, पहले तो अपने गुरु की ना करें ना, कम से कम पहले वहाँ तो शुरू करें। इतना विचार, इतना ओपन माइंडेड अभी नहीं हो सकते। सिद्धांत तो सही है कि निंदा नहीं किसी की करनी चाहिए, ये तो सही बात है। किसी ने कट कर सकते हो तो फिलॉसफी कट कर सकते हो, व्यक्ति को नहीं कट कर सकते आप, पहला तो। वो दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि अभी हम इतने वो नहीं हो सकते, वी कैनॉट बी सो ब्रॉड माइंडेड। इतनी ब्रॉड माइंडेडनेस अभी होती नहीं है। वो ये ब्रॉड माइंडेडनेस के पीछे क्या होता है कि हमारा भी दूसरे साधु में आसक्ति लगा होता है। उसकी साइकोलॉजी ये होती है, दूसरे साधु में हमारी आसक्ति लगी हुई है, तो उसकी निंदा ना हो, उसके लिए फ़िलॉसफी सपोर्ट कर रही है, तो उसकी हम निंदा नहीं कर रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे कि वो गलत है साधु, बट कहने का मतलब है कि आप मत फॉलो करो उसको बस, नहीं तो हम फॉलो करना शुरू कर देंगे। वो फलाना बाबा जी थे, वो भी शायद इस कैटेगरी में आते हैं, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। भाई क्यों नहीं निंदा करनी चाहिए, जब मायावाद बोल रहे हैं वो, निंदा तो होनी चाहिए। पूरा मायावाद बोल रहे हैं, अब लोगों को मायावाद ही नहीं पता है क्या है, फिर उसको पहले मायावाद पढ़ाओ क्या होता है। इसलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्कॉन में एजुकेशन पे बहुत जोर दिया जाता है। जब तक आप एजुकेट नहीं हो, आपको पता क्या है कौन कितना सही है। खाली हर आदमी सर पे टीका लगा ले, बड़ा बड़ा बात कर ले तो बाबा बन गया, सिद्ध हो गया। ऐसे कैसे हो जाएगा। विश किशन भी ऐसा ही था ना, भक्तिनाथ ठाकुर के टाइम पे बहुत सिद्ध था वो, और सही में सिद्धि भी थी। उसके बाद डरते थे लोग, लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर ने उसका पर्दाफाश किया था। तो ऐसे बहुत सारे विश किशन हैं आज की डेट में। बस समस्या भक्तिनाथ ठाकुर नहीं है कोई जो उनका पर्दाफाश कर सके जाके। डरते हैं लोग धर्म के ठेकेदारों पे हाथ डालने पे। ठीक है।
हम ही निंदा करें समझिए कोई शिव संप्रदाय में और उनसे उन्होंने एक दीक्षा दी तो वो अपने गुरु की निंदा कर रहा है नहीं कर रहा तो उससे लागू होगा ही मतलब उसने दीक्षा ली शंकर संप्रदाय से और उनके गुरु है और उनकी निंदा मतलब उनके गुरु में पता लगेगा मतलब वैष्णव गुरु नहीं है तो भाई वो तो फिर उनके ग्रंथों में देखो गलत तो है, निंदा क्यों करना चाहिए? निंदा तो करने का सवाल ही नहीं है। फिर गुरु बनाए किस लिए थे? क्वेश्चन ही आता है। निंदा करने के लिए गुरु बनाए थे? गुरु बनाओ ही मत, कोई जबरदस्ती थोड़ी बोला गुरु बनाने के लिए, मतलब बात समझ रहे हो? गुरु अपनी इच्छा से बनाओ ना आप, कोई फोर्स नहीं आपको गुरु बनाना है, और किसी संप्रदाय में फोर्स नहीं किया जाता है, व्यक्ति अपनी इच्छा से गुरु बनाता है। समझे बात? कुछ बोला ही नहीं अभी मैंने, बोलूँगा, वेट करो। तो अब आता है पांचवा नापराध। पांचवा क्या है? तथा अर्थवादो हरिनाम कल्पनाम, टू कंसिडर द ग्लोरीज ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा टू इमेजिनेशन एंड टू गिव सम इंटरप्रिटेशंस ऑन द होली नेम। अर्थवाद का आरोप करना, तो इसमें ज़बरदस्ती का ना क्या लगाना, मिस इंटरप्रेट करना। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी वन हु इंटरप्रेट्स द स्क्रिप्चर्स मीनिंग बाय सेइंग द स्क्रिप्चर्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ द बेनिफिट ऑब्टेन्ड बाय चैंटिंग ऑफ द होली नेम आर नॉट रियली ट्रू, दे आर ओनली गिवन टू अट्रैक्ट पीपल टू द होली नेम, is the lowest of men. He has no idea of the purport of the scriptures and of what is beneficial for the individual souls. The truth is the opposite to what he thinks. सत्य कुछ और ही है ना, ये समझने का। तो कहने का मतलब है बेवजह का नाम पे दोषारोपण करना, नाम की महिमा को कम बताना। तो ये है हमारा पांचवा जो नाम अपराध होता है। और ये पांचवा छठवा क्या है? साथ में ही आ जाता है। टू कंसिडर इमेजिनेशन एंड अनदर वन इज़ इंटरप्रिटेशन, दोनों एक साथ ही आता है। एक इमेजिनेशन समझना नाम को और उसकी अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशंस देना, वो गलत है। सातवां है नाम के बल पर पाप। नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि ना विद्यते तस्य यमेर ही शुद्धि। इतना स्ट्रांग वर्ड है ये, कह रहे हैं कि नाम के बल पर जो पाप करता है ना उसकी आदत खराब हो चुकी है पाप कर करके, और नाम के बल पर वो भी कहते हैं ना विद्यते तस्य। यम का दो शब्द हैं यहाँ पे। एक यम का अर्थ होता है कि नियम, वो कितना भी नियम पालन करे उससे शुद्धि नहीं होने वाली उसकी, तो कितना नाम पे अपराध कर दिया है पहला। और दूसरा है यम वाले यम, जो यमलोक में बैठे हुए हैं, वो कितना भी मारेंगे उसको तो भी नहीं सुधरेगा, ये इतना बड़ा पापी है, क्योंकि नाम के बल पर पाप करता है ये। सोचो कितना बड़ा अपराध है नाम के बल पर पाप करना। भाई जब आपने ठान लिया कि आप भगवत धाम जाना है, आपको भक्ति करनी है, तो फिर क्यों पाप कर रहे हो? वेरी बेसिक क्वेश्चन है ना, है कि नहीं? बड़ा सुंदर वर्ष है, ना विद्यते तस्य यमेर ही शुद्धि। यमराज भी नहीं शुद्ध कर पाएंगे इसको, इतना ऐसा आदमी है, और कोई नियम भी नहीं कर पाएगा इसको शुद्ध। वो कितना नियम पालन कर ले, देखा कई लोग ये करेंगे, एक टाइम भोजन करेंगे, एक टांग पे खड़े होकर जप करेंगे, एकादशी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कैसे शुद्ध होगा? तुम छोड़ो तो यार उसको, तुम छोड़ ही नहीं रहे हो। जो कॉज है, कॉज को छोड़ो, बीमारी के कारण को छोड़ो। एक बीमारी के कारण जब तक नहीं छोड़ोगे, आप सोचो कि बीमारी ना हो, ऐसा नहीं होगा। मेरे को टाइफाइड है और मैं गंदा पानी पीना नहीं छोड़ूंगा, ठीक होऊंगा मैं? कॉज पे वर्क करना है। महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी ने संन्यास लिया था, छोड़ दिया सब कुछ, दारवेश में आए थे, एक छोटी सी चीज़ थी उनके पास, उनके भाई, उनके बहनोई के द्वारा उनका एक दिया हुआ बहुत ही सुंदर कंबल था श्रीकांत के द्वारा। हजारीबाग से जब आ रहे थे तो वो सब कुछ त्याग दिया। सोचो, दारवेश था ना, दारवेश को त्यागा। दारवेश मतलब दाढ़ी बाल से बड़े हुए थे, मुल्ले की तरह थे, पूरा हेड शेव कराया, दाढ़ी शेव कराई, फिर एक बहिर्वस्त्र मिला, वो बहिर्वस्त्र डाला। लेकिन एक ठंड का समय था ना, वो कंबल नहीं छोड़ा था, जो कंबल लेकर के आए थे अपने बहनोई के यहाँ से, वो नहीं छोड़ा था। और महाप्रभु ने खाली बोला नहीं कुछ, देखा बस, देखने मात्र से समझ गया कि महाप्रभु पसंद नहीं कर रहे इसको। तुरंत गंगा घाट पे गए, एक बूढ़ा सा सोया हुआ था भिखारी, उसको क्या किया उन्होंने,
बोला ये कंबल तुम ले लो मेरा वाला महंगा वाला, तुम अपना फटा हुआ कंबल मेरे को दे दो। वो बोला मजाक करते हो मेरे साथ? वो बोला मजाक नहीं, सच्ची कह रहा हूँ, अपना जो फटा वाला कंबल है हमें दे दो ये दो। तो ले लिया, और जो फटा कंबल डाल के जब गए महाप्रभु के सामने तो वो बड़े खुश हुए। फिर महाप्रभु ने वहाँ कारण बोला कि मैं क्यों खुश हुआ, क्योंकि एक अच्छा फिजिशियन जो होता है ना, जब किसी का इलाज करता है तो चाहता है कि बीमारी जड़ से ठीक हो जाए, ताकि रिलैप्स ना हो। रिलैप्स समझते हो ना, बीमारी पुनः आ जाएगी वापस। तो अब तुम जब पूरी तरह से वैराग्य ले ही लिए हो तो तुम कहाँ इस कंबल के चक्कर में पड़े हो? छोड़ दो इसको, छोड़ दिया, कभी नहीं फिर कंबल स्वीकारा। तो ऐसा होना चाहिए वैराग्य, पत्थर की लकीर के समान। और हम लोग का वैराग्य कैसा हो जाता है? पानी की लकीर या पत्थर की लकीर के, या मक्खन की लकीर कह लो, घींचा तुरंत पिघल भी गया एक झटके में। रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य ऐसा था, एक बार ठाना तो ठान लिया, तभी तो प्रेम मिला ना। प्रेम ऐसे कैसे मिलेगा? खाली प्रेम में रोते रहो उससे कुछ नहीं होगा। भगवान ही जानते नौटंकी कर रहा है मेरे सामने। अंदर बैठ के परमात्मा के रूप में नहीं देखते हमको, देखते हैं भाई नाटक कर रहा है, खाली ड्रामेबाज एक नंबर का। जो छोड़ना चाहिए वो छोड़ रहा नहीं है। इसलिए जो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना होता है, बड़ा हाई क्लास इंटीग्रिटी चाहिए उसके लिए, बहुत ही हाई क्लास इंटीग्रिटी। समझते हो इंटीग्रिटी मतलब? वेरी डीप ऑनेस्टी विद वन सेल्फ, अपने आप के साथ बहुत ईमानदारी चाहिए। तब आप देखोगे ना, तब कृष्ण प्राप्त होंगे आप। ऐसे नहीं होंगे जितना कृष्ण के लिए रो लो। तो इसका रूट कॉज यही है, जब तक कॉज पे वर्क नहीं करोगे ये पाप नहीं ख़त्म होगा। और फिर बैठ के सोचोगे बार बार कुछ भक्तिमय कुछ कार्य लगा लें, तो नहीं होने वाला। एकादशी कर लें, फिर हम नाम जप कर लें, भागवत पाठ करा लें, ये करा लें, हो रहा है कुछ ना हो। कॉज ध्यान रखो, कोई कॉज है जिसके कारण बार बार हो रहा है। हमारे पास जितनी समस्या लेकर के आते हैं, मैं तो उनकी कॉज पे बात बोलता हूँ। मैंने बोला फ़ोन छोड़ दो तुम अपना, जिस दिन तुम फ़ोन छोड़ दोगे परमहंस हो जाओगे। मतलब फिर हम काम कैसे करेंगे? फिर उसके लिए ऑप्शन बताते हैं, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। ये एक एग्जाम्पल, मैं बहुत ब्लंट बोल रहा हूँ, बस बताने के लिए कि कॉज पे बहुत वर्क करना पड़ेगा। ये कॉज क्या क्या है? ऐसे एनवायरनमेंट को छोड़ना पड़ेगा, ऐसे एनवायरनमेंट को कम करना पड़ेगा। बट हो सकता है अभी ना हो रहा हो, बट ट्राई करो। जिस दिन हो जाए उस दिन समझ लेना कि पहुंच गए आप, कम से कम अनादर से पार कर गए आप। अब आप नामाभास तक आओ, नामाभास के बाद शुद्ध नाम आएगा धीरे धीरे। अच्छा, अब यह है 10वां चैप्टर है। यह है श्रद्धाहीन जने नाम उपदेश, अश्रद्धाने विमुखोपि शृण्वति यश्चोपदेश शिव नामापराधनी। कहना मतलब जिसके अंदर श्रद्धा नहीं हो ना, उसको जबरदस्ती नाम नहीं देना चाहिए, या नाम की महिमा नहीं बतानी चाहिए। कि क्या श्रद्धालु आदमी है, विश्वास करेगा है नहीं, अपराध अलग से करेगा। इसके बाद अगला है धर्म व्रत त्याग होता आदि सर्वे, शुभ क्रिया साम्यम अपि प्रमाद। अगर ये जो धर्म में बहुत सारी चीज़ें, व्रत है, त्याग है, आहुति देना, ये सबको अगर एक समान मानता है, शुभ की जितनी शुभ क्रियाएं हैं उसका नाम लेने के समान मानता है कोई, तो एक बहुत बड़ा क्या है, पागल है, प्रमाद। To consider the chanting of Hare Krishna as one of the auspicious activities often in the Vedas as fruitive activities कर्म कांड, ये हम पढ़ते हैं रोज। तो ये अगला अपराध है, ठीक है। लास्ट में इसको ख़त्म करते हैं। फिर इसके बाद अगला नाम अपराध के बाद ये मेंशन करते हैं यहाँ पे, ये लास्ट वन है, नाम अपराधो प्रमाद। सबसे बड़ा अपराध क्या है? प्रमाद, पागलपन, इनअटेंटिव चैंटिंग। तो इनअटेंटिव चैंटिंग है ना, तो इनअटेंटिव चैंटिंग क्या होती है? अवॉइडिंग द अदर ऑफेंसेस। देखो ध्यान से, सारे ऑफेंसेस हो सकते हैं आप त्याग के। अवॉइडिंग द अदर ऑफेंसेस, वन में रेगुलरली चैंट द होली नेम एंड स्टिल नॉट अटेन प्योर लव फॉर द होली नेम। सो महाप्रभु आगे हरदास ठाकुर कह रहे हैं कि अगर नहीं, इसके बाद भी प्रेम नहीं प्राप्त हो रहा ना उसको, तो मतलब कि आई नो दिस ऑफेंस एज प्रमाद, इनअटेंशन, इट ब्लॉक्स द अटेनमेंट ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। तो द प्रमाद इज इनअटेंशन। तो इसमें क्या है, द वाइज सेज कि प्रमाद होता क्या है, व्हाट इज प्रमाद? 3 काइंड्स ऑफ इनअटेंशन होता है, औदासीन्य, जड़ीय और विक्षेप। क्या मतलब होता है औदासीन्य? औदासीन्य इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब है जब करना है करो, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बस 16 माला खींच दो, ऐसे बातें करते लोग, बस 16 माला खींच दी, मैंने खींच दिया, बस निपटा दिया मैंने पूरी 16 माला, बस करनी थी ना, सर पे डाल दिया मेरे, अब क्या करूँ मैं, फंस गया मैं यहाँ तो।
ना इन लोग के फ़िलासफ़ी को मैं पछाड़ पा रहा हूँ, ना इसको प्रॉपरली एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ, तो खींच लेता हूँ बैठ के माला, सुबह शाम खींच रहा है माला वो बैठ के, तो खींचते रहो फिर। तो इसको कहते हैं औदासीन्य, इंडिफरेंस। जड़ मतलब इनर्शिया। जब करने बैठेगा तो ऐसा, अरे यार कहाँ जब मैं बैठा दिए भाई, अब सुबह यार बड़ा बेस में होता है नहीं, सुबह मारपीट के उसको उठा के ले आओ, चलो बैठो जब करो, और पर अरे कहाँ उठा दिया यार, हे भगवान। मैं भक्ति तो आपकी करना चाहता हूँ, लेकिन लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ। हरे कृष्णा क्यों उठाएगा उसको कोई, उठो बोलो, उठो, हरे कृष्णा 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 राम राम राम, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। क्या होगा उसका, कुछ नहीं होने वाला उसका यार। उसको बोलो सो जा जाए भाई, तो सो जा जाए आराम से, तो जीवन में मौज काट, पहले भागवतम पढ़ो, सुनो कुछ टाइम, फिर अगर तेरे को लगे तो फिर आना। ये हो गया जड़। और विक्षेप है डिस्ट्रैक्शन, ये बहुत मुश्किल होता है, ये सब बहुत कठिन होता है। विक्षेप मतलब जब करते करते आप ध्यान नहीं लगा पाओगे। बहुत बार होता है, गायत्री भी करो ना, तो करते करते पता नहीं मन कहाँ किस सोच में चला जाएगा, और फिर वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ी समस्या है, और आज की डेट में बहुत बड़ी समस्या है। फ़ोन है, सोशल मीडिया, इतनी सारी सेवाओं का तो नाम नहीं दूंगा मैं, बट इतनी सारे एंगेजमेंट्स हैं जिससे कि आप फोकस नहीं कर सकते नाम के ऊपर। तो डिस्ट्रैक्शन ये सबसे बड़ा प्रमाद है। कंटिन्यूस फ्लो के साथ जब कोई कर लेना, बहुत बड़ी बात। एक के बाद एक मंत्र उसके चल रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे बहुत देर तक नहीं होता, 10-12 मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 10-12 मन के हो गए, उसके बाद अलग ही सोच में चला जाता है, कुछ और ही सोच रहे हैं वो। बहुत डिस्ट्रैक्शन है, इतना आसान नहीं से निकलना। तो इसीलिए आगे कह रहे हैं कि वन शुड देयरफॉर केयरफुली चैंट अ प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ होली नेम्स। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं इन सबसे निकलने के लिए क्या करो, यत्न कोरी स्मरे नाम संख्या संहिता। तो हमें संख्या दे दी 16 माला प्रभुपाद ने, तो ये संख्या को याद रखना है। ताबे नामे अनुराग होए ते उदित। तो जब संख्या पूर्वक नाम लोगे ना, तो क्या होगा, अट्रैक्शन ऑफ द होली नेम विल अराइज, आएगा, वेट करो। एज लॉन्ग एज द अट्रैक्शन हैज़ नॉट रीजन, जब तक आपके हृदय में नाम के प्रति अट्रैक्शन नहीं आया है, तो क्या करना चाहिए, यू शुड ऑलवेज चैंट द होली नेम वेरी केयरफुली। तब तक उसको नाम जब बड़े ध्यान से करना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट है यहाँ पे तीनों को लेकर के। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट पे, और लास्ट पार्ट करके फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। तो लास्ट पार्ट में क्या है, फिर नाम जप होना कैसे चाहिए। तो उसके लिए एक बार मैंने आपसे बताया था कि 6 बातें हैं नाम में। मना स्मरणम, मना संहरणम, है ना, माइंड कंसंट्रेट करना, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान से बैठना, जप करना। उसके बाद मंत्रार्थ चिंतनम, मंत्र के अर्थ पे चिंतन करना। अव्यग्रता, कोई भागम भाग में जप नहीं करना। निर्वेदा, दुखी नहीं होना मन से, मन में डिजेक्शन नहीं होना चाहिए, मन में दुख, डिजेक्टेड भावना के साथ नहीं जप करना चाहिए। और क्या है, शौचम का पालन करना चाहिए, साफ सफाई, मन संहरणम, शौचम, और एक और छूट रहा है ना, 5 हो गए। मौनम, मन को शांत रखना चाहिए। तो ये 5 से अच्छा जप संपत्ति हेतव, ये बात बोलते हैं सनातन गोस्वामी। तो ये तो बेसिक है हमारा बाहर का। अब इंटरनल मेडिटेशन की बात करें, मंत्रार्थ चिंतनम की, तो हरे कृष्णा मंत्र पे प्रभुपाद ने जो हमें अर्थ दिया है, एक तो अर्थ ये दिया है कि मैं राधा कृष्ण का सेवा प्राप्त हो, इसकी प्रार्थना करते हैं हरे कृष्णा मंत्र पे। इसलिए प्रभुपाद ने अंग्रेजी में बोला था ना, वी प्रे टू द मदर हरा, एंड व्हेन वी प्रे टू द मदर हरा वी एड्रेस हर बाय सेइंग हरे। हरा को कैसे पुकारते हैं, हरे। जब संस्कृत पढ़ोगे आप, तो उसमें 8वां जो विभक्ति होती है संबोधन की होती है। तो राम, हे राम ऐसे पुकारते हैं, हे राम ऐसे पुकारते हैं, हे राम, हे रामो, हे रामाह, है ना। सीता को बुलाना, हे सीता, हे सीते, हे सीताह। पढ़ा है सब संस्कृत में, विभक्तियाँ होती हैं। तो 8वें में संबोधन होता है, 8वीं विभक्ति जो होती है, ठीक बोल रहा हूँ ना, 8वीं विभक्ति संबोधन की होती है। तो उसमें पुकार रहे हो आप किसी को, यार कॉलिंग समबडी। तो जो हरा जब पुकारते हैं तो वो हरे हो जाता है, हरे। तो वास्तविक रूप से आप किसको पुकार रहे हो, श्रीमती राधा रानी, भगवान की सारी शक्तियों को पुकार रहे हो, सारी शक्तियों को।
और कृष्ण जब बोलते हो तो वो सर्वाकर्षक भगवान को संबोधन कर रहे हो आप, उनको संबोधन कर रहे हो आप। कृष्ण जब बोलते हो तो भगवान का संबोधन है वो, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। अब राम शब्द के बड़े अर्थ होते हैं, एक तो भगवान श्री रामचंद्र भी हैं, बलराम भी हैं, बट गोपाल गुरु गोस्वामी में जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, मैं आचार्य एग्जैक्टली कोट नहीं कर पा रहा हूँ अभी, तो उन्होंने अर्थ राम का दिया है राधिका रमन राम, राम रमयति इति राधिका रमन राम, ऐसे बोला हुआ है। तो रमयति इति राम, रमयति तो रम जिसमें क्या हो सके, रमण कर सकें हम भी, जीवात्मा भी रमण कर सकती है भगवान के अंदर। जब अपनी शुद्ध चेतना में होती है आत्मा तो भगवान में रमण कर सकती है, बिना शुद्ध चेतना में आए हुए रमण नहीं कर सकते, एब्जॉर्प्शन ही नहीं आएगा। और भगवान का भी क्या स्वभाव होता है कि भगवान भी हमें खींचते हैं अपनी तरफ। कब खींचेंगे? जब शुद्ध चेतना में होंगे हम, तब खींचेंगे। ये चीज़ है। कर्षति इति कृष्णा, तो कर्षति इति कृष्णा, ये बात समझ रहे हो? ये मेडिटेशंस होती हैं अंदर जो चलती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं जब छोड़ के ध्यान लगा रहे हो, अच्छा कृष्णा मेरे को खींच रहे हैं, मैं राम में लग रहा हूँ ऐसे नहीं होता है। इट बिकम्स ऑटोमेटिकली वो पुल आता है, ऑटोमेटिकली हर शब्द में आता है वो। और इसका डीप मीनिंग और बताते हैं कि जब हम पढ़ते हैं गुराष्टकम तो उसमें कहते हैं ना, श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रतीक्षणास्वादन लोलुपस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो प्रतीक्षणास्वादन, तो प्रतीक्षणास्वादन क्या है? राधिका माधवयोर अपार, राधा और माधव कि जो आपस की लीलाएं हैं उसका आस्वादन, यही चीज़ है राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादनी शक्ति रस्मात। ये बात कविराज गोस्वामी ने बोला है कि ये जो राधा कृष्ण की प्रणय, जो प्रेम की महिमा है आपस में दोनों के, दोनों एक ही हैं, दो ही भेद एक देहधारी, ऐसे करके आता है कि दे आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, बट वो जब आपस में रस का आस्वादन करते हैं, लादनी शक्ति है ना, तो वो जो प्रणय शक्ति, वो जो प्रेम की शक्ति है दोनों के बीच की ना, वो एक जीव को बहुत अट्रैक्ट करती है। इट ब्रिंग्स देम वेरी क्लोजर टू कृष्णा एंड राधा रानी। तो जब करते हैं ना, ये जब करते हैं तो इसका एक और अर्थ होता है। हरे का अर्थ होता है जो राम, हरे जो कृष्ण को हरे, जिस कृष्ण को हर दे, द वन विच अट्रैक्ट्स द लॉर्ड, हरे हरना है ना। ये गौड़ीय रसिकाचार्यों की डेफिनेशन है, मीनिंग है नाम के ऊपर। हरे का एक और अर्थ होता है, हरि से भी हरे होता है, वो हरि को भी पुकारते हैं। तो हरि मतलब जो हरते हैं, वो हरि जो हरते हैं उससे हरे से संबोधन करते हैं। तो इट हैज़ मेनी मीनिंग्स मैं कहना चाह रहा हूँ, बट जो हमारे गौड़ीयाचार्यों ने स्वीकार किया है उसको हम बता रहे हैं मेन। तो उसमें हरे का अर्थ होता है जो स्वयं श्रीमती राधा रानी कृष्ण को हरती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, तो वो राधा रानी का संबोधन हरे से होता है। और कृष्ण जो सबको आकर्षित करते हैं तो वो राधा रानी को भी आकर्षित करते हैं। तो देयर इज़ अ वेरी लविंग ब्यूटीफुल पास टाइम बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो जब व्यक्ति ये जब करता है हरे कृष्णा, तो दैट स्वीट पास टाइम्स गेट्स मैनिफेस्टेड इन द हार्ट, वो आपके हृदय में आएगा। और वो स्वीटनेस ऐसी स्वीटनेस है जिसके आगे कोई भी मिठास दुनिया की नहीं चलती है, फीका पड़ जाता है। इसीलिए ये बात यहाँ पे बोली गई है कि है बहुत मिठास, वो मिठास इतनी मिठास है कि संसार की मिठास ख़त्म हो जाती है उस टाइम पे। तो सबसे जो हाईएस्ट प्लेजर है दुनिया का, जो कि सेक्स प्लेजर है, वो तक आपके हृदय से नष्ट हो जाएगा, फिनिश, ज़ीरो। कैसे? क्योंकि वो जो प्रणय है राधा कृष्ण का जो हृदय में प्रकट होता है, तो उससे वो चीज़ वो ज़्यादा आकर्षित लगेगी राधा ने स्त्री पुरुष का। इसलिए स्त्री पुरुष का जब संग देखे सुने करेंगे ना, उससे घृणा होती है फिर। इसीलिए कहते हैं ना, यदवधि चेत मम कृष्ण पदारविंदे नव नव रस्य धामनि उद्वंतुमासित तदवद नारी संगमे समर्यमाने षष्ठो विकार निष्ठम मृत्युनम च। ये बात कौन कहते हैं? यमुनाचार्य कहते हैं कि जब जब मेरे को नारी संग के बारे में स्मरण आता है तो मैं इसे स्पिट ऑफ करता हूँ। क्यों? क्योंकि नव नव रस धामनि उद्वंतुमासित, क्योंकि भगवान का नव नव रस प्राप्त होता है। तो गेटिंग द पॉइंट, बहुत हायर कंसेप्शन है, बहुत हायर कंसेप्शन है। तो देयर दैट हार्ट, उस हृदय में वो नाम आता है। फिर वो चैंटिंग डिफरेंट चैंटिंग होती है, जिसमें कि वाकई आप भगवान कृष्ण के, राधा कृष्ण की लीला में अब्जॉर्ब्ड हो, यू आर कम्प्लीटली अब्जॉर्ब्ड। ठीक है, अब विराम देते हैं इसको। अब प्रश्न उत्तर फिर समाप्त। बोलिए।
चैंटिंग में जो विक्षेप है, उस पर कैसे क्या solution? उसका सलूशन ये है, देखिए बड़ा ध्यान सुनिएगा, उसका विक्षेप बहुत कठिन है। तो कुछ सलूशन होते हैं वैष्णव सेवा, और आचार्यों का जब आविर्भाव होता है उस दिन हमें बड़ा जॉयफुली उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये जो एक डिफ़िकल्टी है जाएगी आचार्यों की वैष्णव की कृपा से, उससे बिना नहीं जाती है, बहुत मुश्किल है। इट्स लाइक टू डिस्ट्रैक्टेड माइंड इज देयर। तो ये दो सलूशन होते हैं इसके। हाँ जाओ जाओ। जैसे सातवां नाम और राधे नाम की बंदर को आप करना, तो इसमें जैसे चाहती हो गया उसको बहुत तोड़ के, या जैसे अच्छा नाम कर रहा है ये नाम की बंदर को आप करना होता है। और क्या, क्यों कर रहे हैं बार बार वो? क्या भी अच्छा क्वेश्चन है, ओके ओके ठीक है ठीक है। हाँ। तो ये तो ग्रॉस में होगा, सकल में अब कैसे होता है नाम नाम राधे नाम नहीं सटल, देखो मन में कोई उसके मेंटल फैंटेसी चल रही है, लेट सपोज एग्जांपल देते हैं, जो यूथ में होता है क्या है, उसको मेंटल सेक्सुअल फैंटेसी चल रही है दिमाग के उसके, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको चलने दो, मन का कुछ मत करो। अगर उस रिस्पॉन्ड करोगे उसको तो पाप है वो। और फिर हमारे जीवन सदा पापे रत गाना बैठ के भगवान के आगे, तो भगवान कह रहे हैं क्यों पाप कर रहे हो? तो माइंड पे जो इंप्रेशंस छपे हैं छपे रहने दो, उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करना। इतना सेल्फ कंट्रोल पैदा करना पड़ेगा, इतना सेल्फ कंट्रोल हर किसी को लाना पड़ेगा, अदरवाइज तो जानवर से बदतर है हम ना। जानवर कहाँ अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है? कर सकता है, तुरंत रिस्पॉन्ड करता है जो उसके मन में आया। मन का मौजी है ना, लोग मन के मौजी होना चाहते हैं। नहीं, हमारा तपस्या का प्रोसेस है, थोड़ा तो मन को कंट्रोल करो यार। माइंड हैज़ टू बी कंट्रोल्ड, देयर इज़ नो वे। तो आप कैसे, ये कोई बहुत ही लेम एक्सक्यूज़ होती है, क्या करें हम तो विवश थे, विवश हो गए, तो फिर तुम पशु बन जाओगे। जब कम से पाप तो नहीं लगेगा पशु जीवन में, पशु जीवन में पाप नहीं लगता है, ना अपराध लगेगा, कुछ भी नहीं है, बिंदास जीवन है। नंगे रहो, नंगे घूमो, नंगे ऐश करो, नहीं ऐसा नहीं कह सकते। वी हैव टू टेक दैट तपस्या, वो तपस्या लेनी पड़ेगी हमें, ताकि हम मन के गति को रोकें। मना प्रसादात् स्वामत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रीति ये तत् मानसम तपुच्यते, बोलते हैं ना भगवान इस चीज़ को। तो मना प्रसाद, पहले मन को संतुष्ट करो, संतुष्ट करना तपस्या है, सोचो मन को संतुष्ट रखना तपस्या बोली है भगवान ने, सही में तपस्या। लोग संतुष्ट रहना ही नहीं चाहते हैं। अरे आराम से रहो या जब करो आराम शांति से, नहीं जब तक मैं कुछ करूँगा नहीं ना तब तक शांति नहीं मिलेगी मेरे को। ये तपस्या है, मन को संतुष्ट रखना, रखो संतुष्ट, कोशिश करो, सेटिस्फाइड रखने का प्रयास करो। मना प्रसाद, जो मिल गया ठीक है भगवान की कृपा से। मना प्रसाद स्वामत्वम, स्वामत्वम मतलब सरल सोच, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं सोचना चाहिए, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ, वो ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ, कुछ चाल लग रही है मेरे को उसके पीछे, कुछ ऐसा करने वाला है ये मेरे साथ। अरे बाप रे बाप, मतलब यार बस करो यार, थक गया मन, थक नहीं जाता ऐसे सोच के? कई बार थकने लगता है भाई, बस करो यार। नहीं ऐसा लगता है आप लोगों को? मेरे को लगता है कई बार, ऐसा सोचो ना कई बार तो मन थक जाता है। अरे कैसे सोच रहे हैं यार, छोड़ो यार, चुपचाप बैठ के जब करो, रीडिंग करो, जो होगा देखा जाएगा। वो षड्यंत्र रच रहा है मेरे खिलाफ, रचने दो उसको, जब चक्रव्यूह सामने आएगा तब निपटा जाएगा। ऐसे क्या सोचोगे बैठ के, ये रख रहा है, ऐसा हो रहा है, वहाँ ये ना हो जाए, वहाँ ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये, अरे बाप रे बाप, चक्कर घूम जाएगा आपका तो मन का। मना प्रसाद स्वामत्वम मौनम, बड़ 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 बोलता रहता है मन। बोले चुप रहे भाई, चुप इसको चुप करो भाई, चुप हो जाए यार, अब चुप हो जाए, बस हो गया, समझ गए तेरी बात हम, अब चुप हो जाए, चलो दोनों पढ़ेंगे बैठ के भी। अब जैसे किताब खोलोगे फिर बोलना शुरू करें, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये करना था, वो करना था, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, किताब पढ़ रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऑलरेडी तुमको पता है सब, फिर भी तुम पढ़ रहे हो इसको। यही सब आता है मन में, यही सब पता है, ये पहली बार ही पढ़ चुके हो, 2 बार और पढ़ चुके हो, फिर वही बार बार पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? ये इसको छोड़ो, बंद करो, इतनी इंपॉर्टेंट काम पड़ा हुआ है तुम्हारे पास, चलो उठो यहाँ से। अरे बाप, इतना बोलता है, इतना बोलता है। मना प्रसाद स्वामत्वम मौनम आत्म विनिग्रह, ये पॉइंट है, आत्म विनिग्रह। आत्म विनिग्रह, सेल्फ कंट्रोल, ये करना पड़ेगा। मन में आएगा, बहुत बहुत मन में बहुत चीज़ें आएंगी, इसलिए बुद्धि इतनी हमें मजबूत रखनी चाहिए कि हम सही गलत में भेद कर सकें। दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग। शास्त्रों को पढ़ना, सुनना, साधु संग करना, साधु संग, इन सबसे हमारी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, तो हम सही गलत में भेद कर पाएंगे। तो मना प्रसाद स्वामत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिर। भाव संशुद्धिर का मतलब है प्यूरिफाइंग वंस एग्जिस्टेंस,
अपने जीवन को पवित्र बनाना। मानसम तप उच्यते, भगवान ने क्या बोला, ये मन की तपस्या है। ठीक है, चलें। प्रभु जी क्वेश्चन था कि इतना इतना डुप्लीशियस माइंड है कि होली नेम में चैंटिंग करते हैं तो वो भी बस निपटाने के लिए अव्यक्त से करते हैं और वो नहीं आ पाता पूरा, और हम प्रयास भी करते हैं लेकिन इतना विक्षेप होता है कि डिस्ट्रैक्ट होके कुछ और थॉट में चला जाता है और फिर पता नहीं चलता, कुछ राउंड्स चले जाते हैं। तो मैं सोच रहा था कि जब हम चैंटिंग करते, जब मैं चैंटिंग करता तो बीइंग ऑनेस्ट विद कृष्णा दैट हेल्प्स, तो उसमें थोड़ा सा आप इलैबोरेट। ऑनेस्टी का मतलब है कि देखो भगवान हम हैं ऐसे, पहली तो बात तो ये है, मैं हूँ कंडीशनल, मेरे साथ ये समस्याएं तो हैं ही, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू इम्प्रूव। और फिर भगवान क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे आपको मदद देने की। अच्छा तुम इसकी मदद लो, इसकी मदद लो, तो जब मदद लोगे ना तब आपकी हृदय की ऑनेस्टी। अगर आप मदद नहीं लेने को तैयार हो भगवान की, तब कपट है फिर वो। भगवान तो क्यों नहीं मदद करना चाहते हैं, भगवान भक्तों के माध्यम से मदद करेंगे, शास्त्रों के माध्यम से मदद करेंगे, कहीं ना कहीं से मदद करेंगे आपकी। लेकिन आप मदद भी नहीं स्वीकार करते हो भगवान की ना, फिर तो कपट है और कुछ नहीं, क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो उससे हटना। आपकी अटैचमेंट इतनी स्ट्रांग है कि आप उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हो। तो टेक द हेल्प। फिर अगर वो हेल्प नहीं ले रहे इसका मतलब इट इज अ रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। आई एम अटैच्ड टू द वे आई एम चैंटिंग, और मतलब हेल्प ले भी नहीं रहे हैं और कर अपने हिसाब से ही रहे हैं। भगवान जो थोड़ा बहुत टेस्ट देंगे मतलब उसमें ही satisfied वो टेस्ट भी नहीं है, वो खाली मेंटल सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा मिल जाता है बस। टेस्ट तो उल्ली सी, टेस्ट मतलब इसको नशा लग गया टेस्ट का, वो तो अलग ही होता है। वो किसी को दारू का नशा लग गया तो रोक पाओगे उसको, वो टेस्ट रोक पाओगे? एक बार दारू पी लिया उसने तो कहीं से भी चोरी चकारी करके पिएगा वो। तो हमें अगर टेस्ट आ जाए होली नेम का, कहीं भी समय मिलेगा जब करना शुरू कर देंगे, जहाँ समय मिल जाएगा। वेट करेंगे थोड़ी कि प्रभु जी बोलेंगे तब माला करेंगे, या कार्तिक आएगा तब माला करेंगे, एकादशी आएगी तब माला करेंगे, ये कोई नियम थोड़ी है। अब आज भी करो, नहीं आज कोई पवित्र तिथि नहीं, आज कोई माला करें एक्स्ट्रा, ये सब कर्मकांडी विचार होता है, सब और कुछ नहीं होता है। चैंट करो, कौन रोका है? खाली बैठे हो, खाली बैठ के फालतू की चीज़ें कर रहे हो, जब करो। लेकिन वो होता नहीं, इतना आसान नहीं है, इसीलिए उसके लिए अपने गुणों को समझो, क्या आप कर सकते हो स्वाभाविक रूप से, उस पर काम करके उसके फल को अर्पित करो भगवान को, और धीरे धीरे देखना हो जाएगा। चैंटिंग है, रीडिंग करो, रीडिंग अच्छा लगता है रीडिंग करो, भक्ति में कुछ तो अच्छा लगता है ना, उसको करो, हो जाएगा। ठीक है, चलो वो यहीं विराम देंगे। लास्ट क्वेश्चन। श्रद्धा में ही नाम व्यक्ति को नाम का वो नहीं, तो इसकी श्रद्धा का मतलब पुण्य का अपने हिसाब से कि सर्व पुण्य का नाम का विश्वास लग जाए। तो इसे मैंने ऐसा सुना था कि मतलब तैयारी के अंदर में आता है कि भक्ति से यदि भक्ति का कारण भक्ति है, उसमें पुण्य का इसका कोई लॉजिक नहीं है, तो फिर श्रद्धा जो है वो पुण्य से कैसे आएगा? पुण्य से श्रद्धा कैसे? अच्छा क्वेश्चन है। इसका अर्थ ये होता है कि जिसके कम पुण्य होते हैं उनको इन वस्तुओं में श्रद्धा कम होती है। पहला पॉइंट ये बना। अब आप कह रहे हो कि श्रद्धा से भक्ति प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात है, श्रद्धा से ही भक्ति प्राप्त होती है, भक्ति प्राप्त करने का और कोई तरीका है ही नहीं श्रद्धा के अलावा। लेकिन ये जो पुण्य होते हैं ना, पुण्य संचित होते होते कहाँ पे जाते हैं? ये पुण्य संचित होते होते श्रद्धा में ही विकसित होते हैं। इसको भक्ति उन्मुख स्वीकृति बोलते हैं। टेक्निकली इसका मतलब होता है भक्ति उन्मुख स्वीकृति। स्वीकृतियाँ बहुत प्रकार की होती हैं। एक भोग उन्मुख स्वीकृति भी होती है। जैसे संसार में आप किसी गरीब को खाना खिलाओ, किसी की सेवा करो, तो वो भोग उन्मुख स्वीकृति बनती है। भोग उन्मुख स्वीकृति मतलब भविष्य में आप भी अच्छे से भोग कर पाओगे, आपको भी मेटल एन्जॉयमेंट मिलेगी लाइफ में। लेकिन भक्ति उन्मुख स्वीकृति अलग होती है, जिससे कि भक्ति की ही उत्पत्ति होती है। तो ये सब क्या बातें हैं कि इसलिए जिसकी स्वीकृति ये वाली कम है ना, उसको विश्वास नहीं होता इन चीज़ों में, इनकी पोटेंसी के ऊपर। हाँ, भोग उन्मुख से नहीं आता है, भोग से कहाँ आएगा उसको, वो कोई रेलेवेंट ही नहीं है। क्या है महाप्रसाद खाए क्या हो जाएगा, हमें जाना ही नहीं भगवत धाम, हमें तो यहाँ पे बड़ा आदमी बनना है ना, दिल्ली का नंबर 1 व्यक्ति बनना है मेरे को। कौन देखा है इसके आगे कुछ है कि नहीं है? कोई देखा है? ऐसी फिलॉसफी होती है उनकी। तो भोग उन्मुख स्वीकृति है उनके पास, इसलिए सब बातें कर रहे हैं। कुछ मिल जाए बेचारे को प्रसादम भी अगर सही माइंडसेट से एक्सेप्ट करेगा तो और ज़्यादा उद्देश्य बढ़ेगा वो। ठीक है,
चलो हरे कृष्ण। श्री प्रभात की जय, नेगेटिव इंस्ट्रक्शन की जय, शिव गोस्वामी की जय, निताई गौर प्रेमानंद।